Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on bank branch audit. And on this subject, very learned authority and our own CA Gopalji Agrawal with us. I welcome you, sir. I Thank you, sir. also welcome Ashok Bhartiya Surjit Walia and all the attendees. Gopalji doesn't need any introduction. He is a regular to our study circle also, and very famous in chartered accountant fraternity, but still my duty to introduce him very briefly. He is a senior partner at Gopal J Agrawal and Company, chartered accountant firm based at Noida. He is also spiritually connected with ISKCON and yoga. Commerce graduate from Kanpur University in 1987, CA in 1991, DISA in 2003, law graduate in 2006, and IFRS in 2012. He is a regular faculty of State Bank of India, member of the FRRB Research Committee of ICI, a special invitee of Accounting Standard Board of and EAC of ICI, technical reviewer, FRRB, peer review board. He has given deliberation for CPEC ICI through teleconference, webcast for PDC of ICI, NIRC, CIRC, branches and study circle of NIRC, CIRC, and corporate training for professional in industry. His articles in Maswara, NIRC newsletter and various websites, IND AS training and to CNDC and SBI official and other industries. He addressed more than 300 seminar teleconference webcasts in last 8 years, including or on Revised Auditor's Report 2019, IFRS, IND AS, Accounting Standard on Auditing, Excellence in Financial Reporting, Auditor's Report, IFC and CARO 2016, Bank Branch Audit, Revised Schedules 2nd and 3rd to the Companies Act 2013, Accounting Issues in Real Estate Transaction. This is the brief profile of our today's very learned brother, CA Gopalji Agrawal. I again welcome you and over to you, sir. Thank you, Rajesh bhai. Radhe Radhe. Radhe Radhe, sir. At the outside, I'm really grateful to you for giving me this opportunity to discuss the subject or to discuss about the assignment, which is very near to my heart. And sir, probably it is near to everybody's heart who are getting the assignment. Because this is the assignment where we can establish our independence and where we are being rewarded or given the appropriate fees also. So at the outset कुछ complaints है हम लोगों की पहले उसी को discuss कर लेते हैं सर बैंक ब्रांच ऑडिट से related. जी सर Permission of the अरे सर और साथ में एक रिक्वेस्ट करेंगे अपने सभी पार्टिसिपेंट से कि कुछ लोग एज ए पैनलिस्ट अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों की स्पीकर को भी थोड़ा सा नॉलेज और एक्स्ट्रा मिल जाती है. तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स टू प्लीज ज्वाइन एज पैनलिस्ट. आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं, बस आपको स्क्रीन पे रहना है. आपका सुंदर चेहरा हम सब लोग देखते रहेंगे राधा रानी से. सर अशोक भरतिया जी हैं, सुरजीत वालिया जी हैं, और भी कुछ लोग आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा. एंड मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत कुछ नया नहीं है. एक ये रिचुअल है कि बैंक ब्रांच ऑडिट पर प्रोग्राम करना है, तो उसी रिचुअल्स को राजेश भाई निभा रहे हैं और ये आगे भी निभाएंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया. मैं तो भाई साहब से कह रहा था हमने फरवरी में कौन ज्वाइन करेगा बैंक ब्रांच ऑडिट को, अभी तो लेटर आना स्टार्ट भी नहीं हुआ. बट समहाउ वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्व्स. कुछ कंप्लेंट्स बैंक ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है और मैं चाहूंगा अशोक भरतिया जी के भी इसमें बीच में अगर व्यू मिले. तो एक सबसे बड़ा एक पॉइंट यही, अभी आपने जो पॉइंट आउट किया कि इसका जो अलॉटमेंट सिस्टम है, सो टू माय माइंड देखो आई एम वेरी जस्ट लाइक यू. एक जो पॉलिसी जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं फॉलो हो रही है. कुछ बैंकों में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कुछ में नहीं चल रहे हैं. तो एक ये भी एक लाइजनिंग का काम हो गया देखा जाए तो. बट मोस्टली इसमें ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट आ रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. बट जहां पर फर्म्स ज्यादा है और ब्रांचेज कम है, सबसे बड़ी आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 28 पब्लिक सेक्टर बैंक से 14 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए. उसके बाद ब्रांच ऑडिट की आप सीलिंग देखें, पहले 1 करोड़ थी, फिर 3 हुई, 5 हुई, 20 करोड़ की लिमिट है. तो ब्रांच ऑडिट ब्रांचेज काफी कुछ निकल गई.
तो एक ऑफ कोर्स एक गैप क्रिएट हो गया, और उस गैप की वजह से कुछ लोगों को रहता है कि उनको असाइनमेंट उस तरह से, जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिलता। एक फेयर रोटेशन या एक फेयर अलॉटमेंट सिस्टम होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो सबसे जो क्लास, जिसको हम क्लास 4 कहते हैं राजेश भाई, आपने अभी कहा क्लास 4 या कैटेगरी 4, proprietorship concerns, I treat those firms as the class 1 auditors, believe me। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा है तो वास्तव में इंडिविजुअल है, उसके पास पूरी टीम है सर। जी सर, जी सर। One could have a bigger office than the bigger partnership firms, more experienced, तो आना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, कुछ फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि बैंक ब्रांच ऑडिट में भी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, तो इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता इस चीज को। क्योंकि अगर आपके पास एक बार अलॉटमेंट आती है, यू आर अपॉइंटेड एज द बैंक ब्रांच ऑडिटर, तो इस बात को मेरे ख्याल से भरतिया जी भी इंडोर्स करेंगे कि 4 साल आपको कोई हिला नहीं सकता फिर। गोपाल जी, एक बड़ी सजेशन है, अगर आप परमिट करो तो मैं इसमें लगाऊं। हालांकि हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है हम लोगों की, क्योंकि पॉलिसी बन रही है। जी जी जी। In my opinion, branch audit is not a qualitative from anyone, despite with the guidance of different stalwarts of our profession। उनकी गाइडेंस में हम लोग और आप जैसे लोगों की गाइडेंस में काम करते भी हैं, बट है बियॉन्ड कंट्रोल। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है ईयर एंड में जाके 31 मार्च और 2-4 दिन पहले उससे, और बाद में उनका 6-7 तारीख से स्टार्ट के भी आप रिपोर्ट दे दो, जितना भी आप प्रेशर को वाइड कर लो, बट स्टिल यू हैव टू बी इन प्रेशर। यस यस। इसकी अलॉटमेंट सिस्टम जो भी आपने कहा, वो उसी कंटिन्यूएशन में मैं कहता हूँ कि सिस्टम ही इनका अलॉटमेंट का, दिस इज नॉट ए गुड सिस्टम। बेसिकली अलॉटमेंट शुड कम आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो दैट यू आर एट लिबर्टी टू गो इन द ब्रांच व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। यस सर। तो उससे क्वालिटी, एक बार मैंने सजेशन दिया भी था बहुत पहले, 7-8 साल पहले मिनिस्ट्री में, उसका नोट भी पुट अप हुआ था, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ उस वक्त ये वाला। यस यस यस। आई थिंक यू विल काइंडली अप्रिशिएट कि अगर इनिशियल ईयर में हो जाती है ये, यस यस, ईयर के स्टार्ट में क्वालिटी टाइम आपको अच्छा मिल जाएगा काम करने के लिए वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, आई इंडोर्स योर व्यू सर फुली। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस तरह से आती है कि जब आउट स्टेशन ऑडिटर्स होते हैं, तो ये जो बीच में ग्राउंड डिस्कस भी हुई, तो उसमें कहते हैं कि अगर वो मल्टीपल टाइम्स विजिट करते हैं तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी इट गोज मैनी फोल्ड। वो है ठीक है, बट बाय एंड लार्ज तो लोकल ऑडिटर अपॉइंट करती हैं। हाँ ऑफ कोर्स। तो वे कह रहे वी कैन नॉट, तो उसमें भी ये काफी डिस्कशन हुआ मेरा चोपड़ा जी के साथ हुआ, तो वो कहते वी कैन नॉट हैव द टू पॉलिसीज, कि अगर आउट ऑफ स्टेशन के ऑडिटर्स हैं तो दे विल विजिट वंस एंड द लोकल ऑडिटर्स कैन विजिट मल्टीपल टाइम्स। तो ये इस तरह की कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो बात है, लेकिन बट डिस्पाइट दैट मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि अगर कम से कम फैग एंड पे ना देके फरवरी में दे दे, जनवरी में दे दे, इट इज स्टिल बेटर, क्योंकि स्टिल इट विल वर्क मोर। बट एक चीज उसके साथ साथ और भी कहूंगा कि अगर हम चलो नहीं आज की जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में भी अगर हम काम कर रहे हैं सर, तो अगर वी आर प्लानिंग प्रॉपरली, और वो मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, आप लोगों का फीडबैक आप लोगों से, बल्कि आपके व्यूज भी चाहूंगा और आप के वैल्यूएबल सजेशंस भी चाहूंगा, कि अगर हम अभी से प्लानिंग शुरू करते हैं, जैसे अब की बार राजेश भाई ने 25 फरवरी को प्रोग्राम कर दिया, नहीं तो नॉर्मली ये मार्च में करते थे, मार्च एंड। अब मेरे ख्याल से ये क्यों मोटिवेट हुए कि गाइडेंस नोट आ गया आईसीआई का जल्दी, नहीं तो हम लोग प्रोग्राम अपना शुरू कर देते थे, वेबिनार्स और गाइडेंस नोट की कमी रहती थी। इस बार गाइडेंस नोट हमारा बहुत टाइमली, मतलब उस हिसाब से काफी टाइमली आ गया। फेब स्टार्टिंग में हमने वी गॉट द गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई फॉर विच वी यूज्ड टू लुक इनटू। तो एक अच्छा स्टेप ये भी है, और आज ही से तैयारी हम तो कहते हैं शुरू कर देते हैं, 25 फरवरी आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं एक तरह से। और आज में मेरी कोशिश राजेश भाई यही होगी कि बहुत टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगा, टेक्निकल में आपने बता दिया कि लोकेश जी या कोई और चोपड़ा जी भी आएंगे, तो मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की, जो मैंने टॉपिक का नाम दिया प्रैक्टिकल अप्रोच, उसी पे बिल्कुल अपना रखूंगा। और मेरी कोशिश ही होगी कि आज हम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जितने हमारे पार्टिसिपेंट अभी 138 अराउंड हैं, सबको साथ लेके चलें, राइट सर, ब्रांच में जाएं, ब्रांच में ऑडिट कराएं, उसके बाद कंक्लूड करें उसको, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट इशू करें। जी सर, जी सर। आज का ही ये सर इसी तरह से हमारा होना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम्स आती, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो एक हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर भरतिया जी ने भी इस बात को कहा कि टाइमिंग का है, तो उसको देखो प्रॉब्लम्स लाइफ में हर जगह है, लेकिन उसको कैसे एड्रेस करना है। तो टाइमिंग का भी मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है सर, प्रोवाइडेड कि आपकी तैयारी पहले से हो। जैसे आज 25 फरवरी है, हम कहते हैं हमने बैंक ब्रांच ऑडिट अभी हमारे, वी आर कंटिन्यूइंग ऑडिटर्स, वी नो दैट दिस बैंक विल कम, राइट। तो आज से ही हमारी तैयारी शुरू हो सकती है कि इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट आ गया, वी शुड ब्रश अप अवर नॉलेज। जो कॉन्करेंट ऑडिटर्स है दे रिमेन अपडेटेड विद द आरबीआई सर्कुलर्स एंड एवरी डेवलपमेंट इन द बैंकिंग, बट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वंस इन ए ईयर ऑडिट करते हैं उनके लिए ये एक असाइनमेंट, वन टाइम असाइनमेंट होता है। सो वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे प्रोफेशन में अपडेट की कोई कमी नहीं है सर। होता तो ये है कि मैम जब सीतारमन जी 10 बजे 10:30 बजे बोलना शुरू 10 बजे से बोलना शुरू करती है, तो 10:15 पे क्लाइंट चाहता है कि वो बता दे कि उसने बुक में क्या लिख रखा है और कितना बोल दिया उन्होंने, कितने रिलीफ दे दिए। एंड वी ट्राई टू अपडेट आवरसेल्फ बाय द इवनिंग इटसेल्फ। और बल्कि अगर आहूजा जी की पोजीशन देखो तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैडम ने जैसे कंक्लूड किया वैसे ही वो शुरू हो जाते हैं बोलने। जी सर, जी सर। Despite having the bill in the hands, so Yes, we sir. are so much updated, no doubt about it. लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मैं आपसे दिल की बात करूंगा कि कहीं हम लैग करते हैं तो अपने ऑडिट प्रोफेशन में कर जाते हैं। टैक्स में वी आर वेरी मच अपडेटेड, नो डाउट अबाउट इट, इधर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिस टैक्स में भी हम काम कर रहे हैं वी आर वेरी मच पॉलिश्ड। बट एज फार एज ऑडिटिंग इज कंसर्न, आई डोंट नो व्हाई वी टेक इट ग्रांटेड। जबकि ऑडिट प्रोफेशन अब स्टैटिक नहीं रहा सर, बहुत डायनेमिक हो गया। इट इज इक्वली डायनेमिक एज टैक्सेस सर। और खासतौर से बैंक ब्रांच ऑडिट की बात करें, वहां पर तो आप ये देखें कितने सारे सर्कुलर्स ओवर द पीरियड आ जाते हैं। तो टाइम को अगर हम प्लान कर लेते हैं तो हमें कभी टाइम की कमी नहीं खलती। और मैं भरतिया साहब से स्पेशली पर्सनली भी बताऊंगा कि टाइम को हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि कई बार बैंक ब्रांचेस को लगता है कि उन्हें टाइम मिल जाए। And I'm sharing with you, Rajesh bhai, कि in number of cases they have get postponed the audit कि आप 2 दिन रुक जाइए। राइटिंग में सर्कल से चिट्ठी लिए हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। We must be well versed with our basically duties। जितनी नॉलेज हमको चाहिए वो हमें सारी सेमिनार, वेबिनार या गाइडेंस नोट से मिल जाती है, राइट सर। और हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको बहुत ज्यादा और एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक फीस की कंप्लेंट कुछ लोगों को आज भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फीस इज कमेंसुरेट टू द वर्क। हालांकि लास्ट ईयर बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि 20% फीस इंक्रीज हो रही है, 25 हो रही है, क्योंकि LFAR बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली रिवाइज हुआ था, बट वी कुडंट गेट इट। बट स्टिल वी आर सेटिस्फाइड, एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ फीस विच वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस। हालांकि ये चीजें हमें पब्लिकली बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई वाला कहेगा देखो आप ही के स्पीकर कहते हैं कि फीस हमें अप्रोप्रिएट मिल रही है, बट कंप्लेंट नहीं है सर। टाइम फ्रेम की भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। रीजन यही है कि अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग करके चलते हैं, और प्लानिंग कैसे होती है सर कि अलॉटमेंट से पहले मुझे अपने आप को पूरा अपडेट करना, और उसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें और अपडेट कर सकते हैं सर। तो उसमें मैं भरतिया साहब का भी ध्यान चाहूंगा कि सर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जब नया बैंक होता है हमारे लिए, तो हम उस बैंक के पोर्टल को जरूर विजिट करते हैं। ये हमारी ऑडिट फाइल खुल गई आज, मानो 25 फरवरी राजेश भाई ने जल्दी लगा दिया ड्यूटी पे, तो आज से ही खुल गई। अब मैंने क्या किया कि जो बैंक हमारा है या कंटिन्यूइंग बैंक है उसका पोर्टल विजिट करना है आपने। पोर्टल विजिट से केवल एक चीज निकालनी है सर, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर। आप मेरे पॉइंट्स जो है नोट करते जाइए। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर बैंक की। अब मार्च 21 की मैंने एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट निकाल ली। उसमें मैं आई एम नॉट सेइंग कि हम 300-400 पेज पढ़ेंगे, हम केवल 4 पेज पढ़ेंगे सर उसके अंदर, और वो कॉपी पे अपने प्रिंट करके रख लेंगे फाइल में, और वो होंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द बैंक। और उसमें हम हाईलाइट वो पॉलिसी करेंगे विच आर एप्लीकेबल एट द ब्रांच लेवल इटसेल्फ, क्योंकि कई उसमें पॉलिसीज ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैच्योर टर्म डिपॉजिट्स का क्या ट्रीटमेंट करते हो आप? रिकवरी इन एमपी अकाउंट्स को पहले आप प्रिंसिपल में अप्रोप्रिएट करते हैं, आप इंटरेस्ट में अप्रोप्रिएट करते हैं। एवरी बोर्ड हैज द पावर टू मेक इट्स ओन पॉलिसी। आरबीआई हैज लेड डाउन द बेसिकली प्रिंसिपल्स फॉर लोन पॉलिसीज। Master circulars are there, but they have given the liberty to each and every public sector banks board to decide their own policies. तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से
अपेरेंट मिल जाती हैं और हमें कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं सर्कुलर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आरबीआई का सर्कुलर आप देखोगे तो उससे वो जवाब हमें नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। और हमें सही अपनी बात। तैयारी ये करनी है कि हमें कितनी तैयारी ऐसी जो हमें अपने आप जवाब लेना है, बैंक मैनेजर से बात ही नहीं करनी उस बारे में, राइट। और एक में सब एनपीए लेवल आपको पता लग जाता है बैंक का क्या है, और जैसे ही आपका एनपीए लेवल आपको पता लगता है तो एक आपके दिमाग में आ जाता है किस तरह की यहाँ पर वर्किंग है। एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सर उसके अंदर, वो है आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके अंदर में एक स्पेशल पैराग्राफ है की ऑडिट मैटर्स का, काम का। राजेश भाई, काम का जो पैराग्राफ है अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस नोट में सेंट्रल ऑडिटर के अंदर तो दिया हुआ है, ब्रांच ऑडिटर्स के अंदर नहीं दिया है। अब मैं भरती जी से पूछूंगा कि अगर कोई चीज सेंट्रल ऑडिटर पे एप्लीकेबल है सर, तो ब्रांच ऑडिटर पे नहीं होगी क्या? तो होना क्या चाहिए कि की ऑडिट मैटर्स के इलस्ट्रेशन ब्रांच ऑडिटर्स की रिपोर्ट में भी आने चाहिए। और आप देखेंगे हर बैंक में यू कैन नॉट पॉइंट अस आउट अ सिंगल बैंक, आइदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जहां पर सेंट्रल ऑडिटर्स ने की ऑडिट मैटर्स ना दिए हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 701 इसको गवर्न करता है सर। और वो कहता है कि अगर आपके पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, इसका मतलब KAM, काम नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। Getting my point? You have to give a paragraph in the main auditor's report that I have no काम। और जबकि सेंट्रल ऑडिटर्स हर बैंक में 3 या 4 काम को रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 4 काम है, हमारे पास 5 काम है, और इनवेरिएबली उस 5 काम में कम से कम 2 काम ब्रांच ऑडिट पर डायरेक्टली एप्लीकेबल है, अगर 2 भी नहीं तो 1 तो 100% एप्लीकेबल है इन ईच एंड एवरी ब्रांच। और वो क्या है सर? की ऑडिट मैटर, जहां पर सेंट्रल ऑडिटर लिखता है कि देखो भैया, हमने सीवीएस एनवायरनमेंट में हमारा बैंक काम कर रहा है, वी हैव applied our audit tools to the extent possible, we have tested the systems, still there could be errors or fraud which could not be detected by us as the transactions are voluminous, system is cumbersome, so we could be unable to detect it। और ये एक ऐसा पैराग्राफ है राजेश भाई, ये संजीवनी पैराग्राफ है ऑडिटर के लिए। ये की ऑडिट मैटर में जो आ रहा है, आज हम बात करेंगे आपसे, कुछ हमारे पास संजीवनी है जिसको हमें यूज करनी चाहिए, राइट, और कुछ हमारे पास हनुमान जी की शक्ति है जिसको हमें यूज करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं तो जामवंत का काम कर रहा हूं, आप सब हनुमान हो सर, जितने लोग हैं सब, एवरीबॉडी इज हनुमान इन दिस प्रोफेशन। बहुत लिमिटलेस पावर्स है हमारे पास। अगर आप पढ़ें कि पावर्स ऑफ द ऑडिटर्स क्या है, ऑडिटर्स कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रांच, दे कैन क्वेश्चन द ऑफिसर्स आल्सो। तो पावर्स बहुत है, बस हमें वो पावर्स हम भूल जाते हैं हनुमान जी की तरह। तो उन्हें कोई जामवंत याद दिलाता है तो उन्हें याद आती है, अच्छा मेरे पास इतनी पावर है, यस आई कैन यूज इट। तो वो पावर्स आपको बैंक ब्रांच ऑडिट में यूज करनी है, क्योंकि होता क्या है, 360 दिन वो पावर हम यूज नहीं कर पाते, सच्ची बात तो ये है। तो कम से कम 5 या 7 दिन का टाइम मिल रहा है, तो वन मस्ट डेमोन्स्ट्रेट। और फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर इस असाइनमेंट को बचाना है, भरतिया जी तो बात कर रहे थे टाइम की, मैं तो कह रहा हूं अगर इस असाइनमेंट को सेव करना है प्रोफेशन के लिए, और अगर हमें इस प्रोफेशन में इसको रेलिवेंट रखना है इस असाइनमेंट को, तो वी हैव टू परफॉर्म करना पड़ेगा सर। क्योंकि अभी 4 साल पहले एक सर्कुलर आया था आरबीआई का ही, उसने सर क्या कहा सर्कुलर ने, वो तो भला हो एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स का, मैं तो मोदी जी का भी उसमें भला बोल देता हूं कि डर की वजह से वो सर्कुलर अप्लाई नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है। उसमें कहा गया कि कंसीडरिंग द रोबस्टनेस ऑफ द सीबीएस सिस्टम, considering the system driven identification of NPA and considering the technology driven MIS system, the individual public sector bank may decide the threshold level of advances of the branches which are required to be audited. Means the RBI has given the full powers to the bank board to decide the threshold limit of advances also. The day may come when one bank could have 20 crore limit, one could have 50 crore limit also. This is the circular of RBI. And वो circular further क्या कहता है? Progressively, these branches can be phased down
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और मैं इसको फेज्ड डाउन नहीं पढ़ता सर, फेज्ड आउट पढ़ता हूँ कि ये ब्रांच ऑडिट फेज्ड आउट हो जाए। क्योंकि इसका हम एग्जांपल लाइव आपको दे रहे हैं। पहले विजया बैंक में 4 सेंट्रल ऑडिटर थे जब मर्ज नहीं हुआ था, उसके बाद एक रिटायर हुए तो 3 रह गए, 3 ने काम किया, फिर 3 के बाद एक और रिटायर हो गए तो 2 रह गए, 2 लोगों ने सेंट्रल ऑडिट किया। तो कल को वो एट एवरी फर्म इट इज आस्क्ड कि जब एचडीएफसी बैंक के ऑडिटर से पूरी ऑडिट करा सकता है, वो भी सीबीएसई मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक करा सकता है, तो व्हाई नॉट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। हालांकि आई डू नॉट एग्री विद दिस क्राइटेरिया, रीजन बीइंग कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पर आपकी अप्रोच होती है टॉप टू बॉटम। आपको एक चेकबुक भी चाहिए तो हेड ऑफिस से आती है सर आपकी। कोई भी डिसीजन है हेड ऑफिस ड्रिवन होते हैं, सारे डिसीजंस, मेल्स आपकी हेड ऑफिस ड्रिवन होती हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में अप्रोच होती है बॉटम टू टॉप। तो दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, बट स्टिल ये सब चीजें चल रही हैं। तो मेरी आप सबसे आज यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोफेशन को के लिए ये काम अगर बचाना है, एक रेपुटेड वर्क है, एक ऐसा काम है जहां पर अपनी इंडिपेंडेंस हम एस्टेब्लिश करते हैं, वी आर बीइंग रेम्यूनरेटेड प्रॉपर्ली। लेकिन इसके लिए एक बात जरूर है सर, भरतिया साहब की कम से कम 10-12 घंटे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम लिमिट्स हैं वो हैं लिमिटेशंस के साथ में। अगर उससे कम हम काम करके काम ब्रांच कंक्लूड करना चाहते तो वो नहीं हो सकती। कुछ हमें होमवर्क करना पड़ेगा, कुछ ब्रांच में करना पड़ेगा, कुछ फिर शाम को काम करना पड़ेगा, और इस तरह से हमें अपने टाइम को जरूर मैनेज करना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं और प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से डिस्कस कर रहा हूँ सर, कि वन हैज टू बी वेरी पोलाइट आल्सो एट द ब्रांच। ब्रांच के साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है, वी हैव टू बी वेरी सबमिसिव। और सबसे बड़ी बात है, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि अगर उनको पता लग गया कि अशोक भरतिया जी आ रहे, अरे ये तो बिल्कुल ईगल है बैंक ऑडिट के, तो फिर इंफॉर्मेशन उस तरह से फ्लो नहीं होगी जिस तरह से किसी और को फ्लो होगी। तो वी हैव टू डोंट हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आई एम द ऑडिटर, you have to be at the receiving end just like in other clients also, क्योंकि हमें अल्टीमेटली परफॉर्म करके आना है। और एक और बहुत बड़ी चीज है सर बैंक ब्रांच ऑडिट के अंदर, इट इज वेरी इजी टू एक्सपेंड योर विंग्स बट इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू लैंड। आप कितना भी हाथ फैला सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस आते हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। मैं कहता हूं एक ऑडिटर्स को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया जो गनमैन खड़ा है उसके अंदर बारूद है वो प्रॉपर है या नहीं है, यहां तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू सी द हाइट, बट आपको किस एरिया में फोकस करना है, कौन से आपके मैक्रोज इशू है, उस पे आपको फोकस करना है, आपको छोटी चीजों पे फोकस नहीं करना है। समटाइम्स सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर बेसिकली वेरी inclined to visit the borrower's office or borrower's unit. It is not desired. It may be required if you have any kind of doubt, suspicion and all that, but otherwise in a routine way we are not supposed to visit the units. If we are visiting the unit, we are merely wasting our time, because the account statements of the borrowers itself speaks a lot. हाँ, कहीं आपको फ्रॉड है, ऑफ कोर्स यू, कहीं आपको लगता है कि यहाँ विजिट बहुत जरूरी है, यू कैन डू बिकॉज यू हैव द पावर्स। मैंने कहा हनुमान जी की पावर तो सारी है, कुछ भी कहीं भी उड़ सकते हैं, बट है यही कि कहाँ कहाँ उड़ना है, क्योंकि हम उड़ तो कितना भी सकते हैं, लेकिन उतना उन चीजों को हम कितना समअप कर पाएंगे, समअप करना उतना इंपॉर्टेंट है। और समअप आपको एक बैंक ब्रांच ऑडिट में मैं यही जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने ये सोचा कि इस डॉक्यूमेंट को मैं दोबारा देख लूंगा या इस चीज को दोबारा देखूंगा, यू विल नॉट गेट द टाइम, फॉरगेट इट। सो वी हैव टू कंक्लूड देन एंड देयर जो भी आपके रिमार्क्स हैं, और कंक्लूड का मेरा मतलब कहीं डिस्कशन से नहीं है। एक मेरी और रिक्वेस्ट है आप सबसे, राजेश भाई, ड्यूरिंग द बैंक ब्रांच ऑडिट वी शुड नॉट डिस्कस अवर फाइंडिंग एट ऑल। कोई भी फाइंडिंग हमें केवल नोट करनी है, डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि भरतिया साहब कई बार क्या होता है, अगर आप डिस्कशन में लग जाते हैं आपका पूरा दिन उसी में निकल जाता है डिस्कशन में। वो उठा के ले जाएगा, जैसे आप अभी गाड़ी में चल रहे हैं, अरे साहब पास के वहां चलते हैं, बोरोवर क्या चलते हैं, बहुत बहुत अच्छा भला आदमी है, आपको दिखा के लाते हैं यूनिट, सर हमारी बैंक की तो एक्सेप्शनल यूनिट है वो। तो वी विल नॉट गो इनटू आर्ग्यूमेंट्स एट ऑल, हम डिस्कस भी नहीं करेंगे,
अब हमें प्रॉब्लम क्या आती है जब हम नोट करते हैं अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के लिए, कहते हैं साहब आप बहुत कुछ नोटिंग कर रहे हो, पिछले ऑडिटर ने कभी नहीं किया ऐसा। तो हम कहते हैं हमारे एक पार्टनर है भरतिया साहब, वो बहुत जब हम फाइल लेके जाते हैं तो वो देखते हैं, थॉरो चेक करते हैं फाइल। अच्छा आपके भी पार्टनर है, आप तो काफी बुजुर्ग से लग रहे हो, नहीं कोई बात नहीं, एक और सीनियर पार्टनर है वो देखते हैं हमारी फाइल, इसलिए वी हैव टू नोट इट डाउन। इस तरह से बात करनी पड़ती है सर राजेश भाई। और दूसरा ये दिखाना पड़ता है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द बैंकिंग, और मैंने तो यहां तक आई एम मेड बाई सेल्फ कि उससे पूछ दो किसी से, लोन ऑफिसर से, यार ये एनपीए क्या होता है, सच में गदगद हो जाएगा उसका दिल, बाग बाग हो जाएगा, मिठाई पीछे से मंगवा के खाएगा, कहेगा अब की बार ऑडिटर फंसे ऐसे। हाँ ऑडिटर अब के अच्छा आया, इसको कुछ नहीं आता, मेरी तो ऑडिट हो गई। इनको तो एनपीए भी नहीं आता। प्रैक्टिकली आई एम अप्लाइंग दिस टैक्टिक्स प्रैक्टिकली। या जो बच्चा आपका सबसे स्मार्ट है ना, वो जो काम करने वाला बच्चा, उससे पूछवा दिया तो उसे पता हो गया कि ये बच्चा बिल्कुल जीरो है। अब इसको सिस्टम दे दो, इसको सिस्टम दे दो, उसको अगर सिस्टम फुल फ्लैश मिल गया। हमारी जो ऑडिटर्स की लॉगिन आईडी होती है राजेश भाई, 80% फंक्शंस उसके बंद हो जाते हैं। Oh my God. Believe me, you cannot access the number of reports by that ID and it is deliberate. So why I used to do कि भैया लोन ऑफिसर की या मैनेजर की आईडी से लॉगिन करो, आप हमें कर दीजिए, हम वी विल सी इट। वहां पर सारी चीजें, सारे मेनूज आपको खुल जाएंगे। अदरवाइज आपके पास पता लगा कि केवल और केवल आपके पास ब्रेड रह गई, आई नहीं कोई वेजिटेबल, खाओगे क्या? आपको दिखेगी नहीं स्क्रीन पे कि ये रिपोर्ट भी जनरेट हो सकती है, जबकि एन यू जस्ट थिंक ऑफ द रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड। आप मतलब जस्ट सोचिए कि क्या ये रिपोर्ट भी हो सकती है, वो भी रिपोर्ट आती है। हर तरह की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं सर। द सिस्टम इज सो एग्जॉस्टिव। जैसे एक्सेल में अगर हम बात करें, हम लोग 2% एक्सेल यूज करते हैं। लाइकवाइज बैंकिंग का जो सीबीएस सिस्टम है ना सर, हार्डली 5% हम यूज करते हैं। इतने मेनूज है, इतने सब मेनूज है, बट हमें फोकस हमारा ये होना चाहिए किस किस मेनू पे काम करना है। तो मेनूज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकेश भाई हमारे सीबीएस के मास्टर हैं, तो वो उनसे कमांड्स जरूर लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएं और उनसे शेयर करवाएं उन कमांड्स को कि किन किन कमांड से हमें क्या क्या चीजें देखनी है सर। डिस्कशन सबसे लास्ट में करना है सर, और लास्ट में करना नहीं है डिस्कशन राजेश भाई, करना नहीं है, लिख के देना है। और लिख के कहाँ देना है? ऑडिट रिपोर्ट में, LFAR में। यू ड्राफ्ट योर फाइंडिंग्स। आप अपनी इंडिपेंडेंट, सर बिलीव मी, जैसे ही मैं ऑडिट स्टार्ट करता हूं, मेरा राइटिंग पैड पे शुरू हो जाता है कि ये चीज IAR में जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये LFAR की चीज है, ये इस सर्टिफिकेट की चीज है, ये यहाँ की चीज है, वहीं शुरू हो जाती है। सो दैट एट द लास्ट जब हम अपनी रिपोर्ट्स ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को उठा लेते हैं और उन रिपोर्ट्स को लास्ट में, और जब कोशिश ये करते हैं सर उसमें भी, अगर हमारी तीनों ब्रांच एक ही जगह की है, दोनों ब्रांचेज एक ही स्टेशन की है, तो दोनों रिपोर्ट्स को हम होल्ड करके रखते हैं। जब दोनों या तीनों ब्रांचें हमारी कंक्लूड हो जाती हैं, तो लास्ट में वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भैया ये हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट आने वाली है, अब आपको कुछ अगर इसमें चीज गलत लग रही है तो वी कैन रीचेक इट, उसको आप हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए। और वो कहते हैं सर राजेश भाई ये लैंग्वेज तो आपने बहुत हार्ड यूज कर दी, सर आप सॉफ्ट कर लीजिए, हम लोगों का हाथ ही हार्ड है, क्या बताएं, हमारे प्रोफेसर में ही ऐसा सिखाया गया, तो आप कर लीजिए। तो अब जब हम आपको लिबर्टी देते हैं तो एक आपके साथ हमारा रिलेशन बन जाता है कि राजेश भाई को या हमने ऑडिटी को ये कह दिया कि आप काट के ठीक कर दीजिए, और उन्होंने हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट पे काटना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश हैं कि ऑडिटर्स आर सो सोफिस्टिकेटेड दैट दे हैव अलाउड अस टू मेक द रिपोर्ट। बट माइंड इट, हमारा पर्पज कुछ और है सर। हमारा पर्पज है वी हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द ऑडिटर टू एक्सप्लेन द थिंग्स। क्योंकि कई बार मुझे सोकॉज इस तरह के मिले हुए हैं कि यू हैव नॉट डिस्कस्ड योर फाइंडिंग्स विद द ब्रांच मैनेजमेंट। राइटिंग में मैंने 2-3 पेज का नोटिस फेस किया हुआ है सर, राइटिंग में। सो अब जब वो रिपोर्ट में कटिंग कर देते हैं, उसमें वो रिपोर्ट्स का ओरिजिनल वाला रिपोर्ट, मैं आज कुछ ऐसी आपसे बातें करूंगा विच मस्ट अप्लाई, वो रिपोर्ट्स हम उठा के अपनी वर्किंग पेपर में रख लेते हैं। तो हमने क्या हुआ, अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट कर दिया, हमने अपना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 260-265 की कंप्लायंस भी कर ली कि हमने अपॉर्चुनिटी पूरी दे दी आपको, और कुछ चीजें हो सकती है हमने गलत नोट की हो तो वो कट भी गई आपकी।
और वो और रिफाइन हो गई। तो ये सब चीजें, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन शुरू से डिस्कस करनी शुरू कर दी, बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर जॉब। नेवर डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन बिटवीन, नेवर, अनलेस इट इज वेरी मच वारंटेड। क्योंकि अगर फाइंडिंग आप डिस्कस करते हो, फिर आप काम नहीं कर सकते ब्रांच के अंदर। आप ब्रांच के अंदर कब कब काम नहीं कर पाओगे? जब आप अपने आप को ऑडिटर दिखाओगे, जब आपको अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन दिखाओगे, जब आप अपने आप को एग्रेसिव दिखाओगे। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड सबमिसिव। वैसे भी ह्यूमन ग्राउंड पे भी वन हैज टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि बैंक वाला आज जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है सर राजेश भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वी शुड अप्रिशिएट द टाइम हैज गॉन। जब लड़का बैंक में होता था तो प्रीमियम पे जाता था सर, और आज अगर पता लग गया कि ये ऑफिसर है तो डिस्काउंट पे जाता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। और जो बहुत क्लोज है बैंकिंग के, वो तो देंगे ही नहीं लड़की को। हाँ, ये तो यार, ये तो 10-15 साल में इसने बीपी और हाइपरटेंशन का पेशेंट हो ही जाना है। बिल्कुल सही है। एंड इट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग। ये नहीं कि वो हमारे सामने गोली खा रहे हैं सर, बहुत बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे हैं, बहुत प्रेशर में काम करते हैं, खासतौर से ऑफिसर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लरिकल। तो उन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। और लास्ट में हमने कहते ना, वी आर द वॉच डॉग। ब्लड हाउंड नहीं है हम वॉच डॉग हैं। तो वॉच डॉग किसके हैं सर? भाई जो काम हमें दिया गया उसके लिए। तो कई बार हम पूछते हैं कि वॉच डॉग का काम क्या होता है? कि कोई आ गया अननोन आदमी, क्या करता है डॉग? इट यूज्ड टू बार्क। अगर वो चुपचाप बैठा रहे कि कोई राजेश भाई के देखा ऑफिस में आ रहा चुपचाप बैठा हुआ, तो राजेश भाई कहेंगे इसको बाहर करो, रखा क्यों है? क्यों सर? सही बात है। कुछ लोग अगर और जुड़ सकते हो तो राजेश भाई को मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। सुरजीत वालिया जी भी जुड़े हुए हैं, भारत गांधी जी हैं, अशोक भरतिया जी हैं, एक आध लोग और कोई आ जाए, यंग से आ जाए, बच्चे अगर कुछ आ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट। प्लीज रेज द हैंड एंड राजेश जी विल गिव ऑल काइंड ऑफ राइट्स ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज Most welcome, sir. Anybody who is interested to join us as a panelist, most welcome. Please raise your hand. I will take him as a panelist. पैनलिस्ट को बोलना कुछ नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि पता नहीं कुछ बोलने हमसे भी बोलना नहीं है सर, बात करनी है केवल हमसे। जी सर, बिल्कुल। वन हैज टू। तो सर वॉच डॉग का काम क्या है? बार्किंग। तो राजेश सब्बरवाल जी को दे दीजिए सर। राजेश सब्बरवाल जी हैज रेज्ड द हैंड। सब्बरवाल साहब तो बढ़िया है, इतनी देर से पता नहीं लगा, बाद में लेट ज्वाइन किया है इन्होंने तो। हाँ जल्दी दो सब्बरवाल साहब। तो आगे। तो वन सो ऑडिटर वॉचडॉग हैज टू बार्क। सब्बरवाल साहब को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। तो सब्बर साहब बात कर रहे थे कि वॉचडॉग की ड्यूटी है टू बार्क इफ इट सीज एनीथिंग रॉन्ग। तो ऑडिटर आल्सो हैज टू बार्क। तो किसी ने कहा ऑडिटर कैसे बार्क कर सकता है? कोई अगर लोग रिस्पॉन्ड करना चाहे इस चैट बॉक्स में कि भाई हाउ द ऑडिटर्स कैन बार्क एंड व्हाई वी आर कंपेयर्ड विद द वॉचडॉग। अगर बार्क डॉग से, चलो वो तो आप उसके लिए डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बार्क कैसे करना ये बता दे बस। हाउ टू बार्क, हाउ द ऑडिटर्स कैन बार्क थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। यस। तो एक बार राजेश जी के लिए क्लैपिंग कर ले अपने ऑफिस में बैठ के। हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो है सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, आप हेडिंग देखिए उसकी क्या है, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल एमओसी के थ्रू। एमओसी, गुड। मुकेश श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल ठीक कमेंट किया। तो देखिए बार्किंग के कई स्पेसेस हैं आपके पास, कई मैनी प्लेसेस, और सबकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की थ्रू बार कर सकते हैं। और ये सर जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, इसमें इंडिपेंडेंट का बहुत मीनिंग है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही जोड़ दिया गया कस्टमरी, इसको पहले नहीं लिखा जाता था, पहले केवल ऑडिटर्स रिपोर्ट हुआ करती थी सर, जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। जी सर। तो अब इंडिपेंडेंट जोड़ा गया। इंडिपेंडेंट का आज मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब है डुअल पर्पज है इसका। डुअल पर्पज क्या है सर? पहला पर्पज ये है कि यूजर्स को ये बताना कि ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट है। यूजर्स को ये बताना
कि ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये है, राइट। और सेकेंड ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना सर, ये भी इंडिपेंडेंट है, मीनिंग देयर बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर रिपोर्ट्स। वी कैन नेवर रेफर LFAR इन अवर मैन ऑडिट रिपोर्ट। हम अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में LFAR को रेफर नहीं कर सकते सर। LFAR इज नॉट इंडिपेंडेंट। LFAR में मैन ऑडिटर्स रिपोर्ट का आप रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं। इसका मतलब दिस इज द सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट। आपने कहीं कुछ भी कहा हो, LFAR में कहा हो, किसी सर्टिफिकेट में कुछ कहा हो, कहीं कोई डिस्क्लेमर्स दिए हो, लेकिन इक्वली यू हैव टू वे कि आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या देना है। क्योंकि अगर आपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्लीन दे दी, क्लीन ओपिनियन दे दी, आपने खूब मेहनत की है, पूरा LFAR आपने भरा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक तरफ तो आपने क्या कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, ब्रांच में सब कुछ ठीक नहीं है, LFAR के एडवांसेस में दिक्कत है, आपकी कैश मैनेजमेंट में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन जब हमने कंक्लूड किया उसको थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक है। इट मींस कि आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। एम आई राइट मुकेश जी? अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया आपने। एक तरफ आप कह रहे हो कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत है, बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, सीरियस डेविएशंस हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आज मेरा सबसे बड़ा हाईलाइट करने का फ्रेंड्स पॉइंट यही है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा गाइडेंस नोट ICI का आता, मैंने कई बार लिखा भी AAS, उसमें जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होते हैं ना राजेश भाई, वो केवल क्लीन ओपिनियन के होते हैं ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स का एक परसेप्शन ये बन जाता है कि बैंक ब्रांच ऑडिट में तो क्लीन ओपिनियन के अलावा कोई जा ही नहीं सकती, जबकि सबसे ज्यादा अगर इसको मॉडिफिकेशन का है ऑडिटर्स रिपोर्ट में तो बैंक ब्रांच ऑडिट के अंदर ही। बिलीव मी, अगर बैंक ब्रांच ऑडिट ढंग से, ऑडिटर्स रिपोर्ट ढंग से जाने लगे ना राजेश भाई, one cannot think of to scrap this assignment. 80% रिपोर्ट्स मॉडिफाई हो जाएंगी, 80%। ये मैं बिल्कुल पॉजिटिव साइड बोल रहा हूँ, पेसिमिस्टिक साइड बोल रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, बहुत ज्यादा और ज्यादा हो सकती है। एग्रीकल्चर ब्रांच में 100% रिपोर्ट्स मॉडिफाई करनी पड़ेगी, 100%। नो एग्रीकल्चर ब्रांच इज क्लीन, कहीं ट्रू एंड फेयर नहीं है फाइनेंशियल रिजल्ट सर आपके। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, मैंने कुछ मॉडिफाइड रिपोर्ट्स बनाई है, ड्राफ्ट रिपोर्ट्स बनाई है अपने फ्रेंड्स के लिए। उस समय फीडबैक आता, हम अपने आप को भी इंप्रूव करते हैं और चीजें जोड़ते हैं। उसमें मैंने इलस्ट्रेटिव बनाई है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में आप क्वालिफाई करेंगे और किन किन सर्कमस्टांसेस में आप एडवर्स ओपिनियन देंगे। एंड माइंड इट, जब भी आप अपनी चीज को मॉडिफाई करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो कई बार लोग कुछ प्रोग्राम में कह दे, जो नॉर्मल अदर देन ये जो होते कहते क्वालिफाई तो बड़ी अच्छी चीज होती है सर। हाँ बिल्कुल, सोसाइटी में लोग क्वालिफाइड लड़का, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड लड़की, सब कुछ क्वालिफाइड ही देखते हैं, क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है। तो अगर ऑडिटर्स ओपिनियन क्वालिफाइड है, फिर क्या दिक्कत है? इट शुड बी अप्रिशिएटेड ना। जी सर, जी सर। एंड प्रैक्टिकली यू सी कि क्वालिफाइड ओपिनियन देने के लिए क्वालिफाइड, हाँ लोग कहते हैं ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन हमने कभी अनक्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं देखा सर। बिल्कुल ठीक बात है। क्वालिफाइड, कई बार लोग अपना इंट्रोडक्शन भी कहते हैं तो कहते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा अनक्वालिफाइड कभी मुझे मिला नहीं। तो क्वालिफाइड ओपिनियन आप तभी दे पाएंगे सर वंस यू हैव परफॉर्म्ड। अपने प्रोफेशन में भी अगर मैं देखता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि चलो एक क्लोज सर्कल में हम लोग, अगर कोई सुनता भी है तब भी कोई बहुत ज्यादा परहेज नहीं है, कि दो तरह के ऑडिटर्स हैं सर, एक PA एक NPA, परफॉर्मिंग ऑडिटर्स और नॉन परफॉर्मिंग ऑडिटर्स। अगर आप ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहते हो तो यू हैव टू बी परफॉर्मिंग ऑडिटर। नॉन परफॉर्मिंग ऑडिटर तो कर ही नहीं सकता उसको, क्योंकि क्वालिफाई के लिए इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्किल्स चाहिए। स्किल्स का मतलब आपने कुछ स्किल तो सभी के पास है, मैंने कहा सब हनुमान है, सबके पास पावर है, सबके पास नॉलेज है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द योर ऑब्जर्वेशंस की किस किस सर्कमस्टांसेस में आपकी ओपिनियन मॉडिफाई। और अगर 80% क्या 20% ब्रांचों में क्या 10% ब्रांचों में भी अगर मॉडिफाइड ओपिनियन जानी शुरू हो जाए, बैंक ब्रांच ऑडिट की बात कर रहा हूं सर,
कोई सोच सकता कि बैंक ब्रांच ऑडिट को स्क्रैप कर दिया जाएगा? क्या सेंट्रल ऑडिटर इस पोजीशन में होंगे कि वो क्लीन ओपिनियन दे दे बैंक की? If 10%, at least 10% of the bank branch auditors could modify their, नहीं कर सकते। होता क्या है कि कोई एक्सेप्शनली एक दो रिपोर्ट्स आती हैं, so they have all the powers to ignore it. हमारे अपने स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि उसको वो इग्नोर कर सकते हैं, कंसीडरिंग द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट आज यही है कि प्लीज एक तो ऑडिटर्स रिपोर्ट को पढ़िए जरूर, क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट में कई एक ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती हैं जो हम बिना पढ़े उसको यस करें। खासतौर से मैं बैंक ब्रांच ऑडिट की बात करूं, उसमें कई पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो ब्रांच लेवल पर एप्लीकेबल ही नहीं है फुली। जैसे उसमें एक फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है दैट द ब्रांच हैज फॉलोड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई। मैं पूछता हूं AS1 कहीं फॉलो होता ब्रांच लेवल पे? AS1 talks about the disclosure of significant accounting policies. In which branch it is disclosed? हेड ऑफिस लेवल पे ही है। हेड ऑफिस लेवल पे। सर वी शुड राइट कि टू द एक्सटेंट ब्रांच में एप्लीकेबल वही अप्लाई होते हैं। उसमें लिखते हैं कि द ब्रांच हैज मेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यू शो मी ए सिंगल ब्रांच जहां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट उस तरह से बन रही जो उसमें सारी डिस्क्लोजर्स चाहिए। डिस्क्लोजर्स है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो तो एक कंपाइलेशन है। कौन सा ऐसा ब्रांच है जो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है? नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन एट द हेड ऑफिस लेवल। कई ब्रांच में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जी हेड ऑफिस लेवल पे होता है। अपनी ऑडिट फीस नहीं पड़ी होती साहब। हाँ, फिर ट्रू एंड फेयर कैसे हो गया P&L अकाउंट? हाँ, लिखा जाता है कि रेड विद द एमओसीज एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड एट हेड ऑफिस। लेकिन पॉइंट ये है कि जो नीचे पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए, वो डिस्क्लेमर्स के साथ होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। हालांकि वो क्वालिफिकेशन नेचर के नहीं है, बट उनमें लगा होना चाहिए इस तरह का कि भैया इस तरह से बने हुए हैं। सेकंड, आप अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट्स एड्रेस करते हैं वो SCA को करते हैं सर, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को। सो एज ए मैटर ऑफ कॉशन यू शुड राइट दैट दिस रिपोर्ट इज ओनली मेंट फॉर द SCAs, because there are number of limitations at the branch level. मैं बताता हूं आपको लिमिटेशंस क्या है सर। हर ब्रांच के अंदर एक 2-4 अकाउंट इस तरह के होते हैं, जैसे इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, ड्राफ्ट अकाउंट, यू विल सी। और उसके अंदर पूरे ब्रांच का बिजनेस उस हेड के अंदर बिजनेस बराबर का मिल जाएगा, वो इससे ज्यादा मिल जाएगा। सर यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम अपनी बैंक ब्रांच ऑडिट को सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एड्रेस करते हैं जी, तो यदि लेटर में उसमें कोई गलती आए तो RBI और इंस्टीट्यूट क्या एक्शन ले सकता है फिर उसको? नहीं, बिल्कुल ले सकता है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो एक तरह से जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप ऑडिट कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होंगे सर, यस सर, देखो मैं पकड़ गया सर, मैंने भी लॉ सर बिकॉज आवर ऑडिट टू ओनली टू SCA। यस, मैं कहूंगा योर ऑनर काइंडली सी टू whom this report has been addressed, यस, and they are the principal auditor. We are responsible to only to him. Yes, so he is answerable and accountable to him only. Yes. तो ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम जैसे सर्टिफिकेट लिख देते, राजेश भाई सर्टिफिकेट लेने आया कोई लिख देते टू whomsoever it may concern। नहीं अब नहीं लिखते सर। He invited the whole world to use it. Mind it, never write such kind of words in certificates. The certificate must have addressee, और addressee specific addressee। लोग लिख देते हैं to Canara Bank, never write Canara Bank particular branch also, so that certificate cannot be used to with any other branch of that bank itself. You are limiting your responsibilities. और दूसरा, आप प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, कल वही को सर्टिफिकेट 4 जगह चला रहा है। यस सर। Once addressee is there, of course you are responsible for that SSC. अगर आपने to whomsoever it may concern लिख दिया, then anybody in the universe can sue you in the court of law. कि on the basis of this I have relied and this is like that. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को इतना इग्नोर मत करें। अगर इस प्रोफेशन को रखना, इस असाइनमेंट को रखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट जब आप मॉडिफाई करेंगे
तभी इसमें कुछ होने वाला। और इसके लिए जो हमारा बेसिक, हमारे दो ही स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है राजेश भाई, ऑडिट प्रोफेशन में हम क्यों थोड़े से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता ना कि कहते हैं ना, जब आप अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो तो लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिलती आपको। शॉर्ट टर्म तो मिल सकती, लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगी। क्योंकि पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मेरा ऐसा मानना पक्का है। जी सर, जी सर। पेरेंट्स ने जब अपने प्यार को एक्सटेंड किया तो मदर बना दी, और जब सिक्योरिटी को एक्सटेंड किया अपनी तो फादर बना दिया। तो ये पेरेंट्स हमारे लिए इट इज द एक्सटेंशन ऑफ गॉड। हमारे ऑडिट प्रोफेशन के कुछ इसी तरह के पेरेंट्स हैं जिनको हम भूल बैठे हैं, और वो पेरेंट्स हमारे दो हैं। एक पेरेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसके अंदर भी अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर रिपोर्टिंग पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि जब पेरेंट्स है तो आगे भी जनरेशन चलेगी ना उसकी, तो रिपोर्टिंग पेरेंट्स दो 700 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700 व्हिच टॉक्स अबाउट द क्लीन ओपिनियन, और मैं इसको मदर स्टैंडर्ड कहता हूं रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में ये मदर स्टैंडर्ड है विच इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ रिपोर्ट इशूड बाय द प्रैक्टिशनर। और एक दूसरा है राजेश भाई 705 व्हिच टॉक्स अबाउट द मॉडिफिकेशन। और जब आप मॉडिफाई करते हो इसका मतलब आप थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हो, इसलिए मैं इसको फादर स्टैंडर्ड कहता हूं रिपोर्टिंग का। क्योंकि मदर सॉफ्ट, क्लीन ओपिनियन सॉफ्ट, और थोड़ी हार्ड हुई तो फादर हो गया 705। और जब मदर ऑफ पेरेंट्स है तो सिबलिंग्स भी होते हैं, तो कुछ सिबलिंग्स भी हैं इसके साथ में, जैसे 706 फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड है बैंक ब्रांच ऑडिट में बहुत काम का स्टैंडर्ड है। कई बार मैं जब लाइव सेमिनार होता तो पूछता हूं कि क्या 706 को कभी बैंक ब्रांच ऑडिट में यूज करते हैं, which talks about the matter paragraph and other matter paragraph। और ये अदर मैटर पैराग्राफ बैंक ब्रांच ऑडिट में फ्रेंड्स बिलीव मी दिस इज द संजीवनी पैराग्राफ। संजीवनी है सर ये हमारे लिए, हमें इसको लेना आना चाहिए। क्योंकि आपको, अगर आपने रामानंद सागर की रामायण पढ़ी हो, देखी हो, पढ़ी तो नहीं, तो उसमें सुग्रीव जब जल्दी से उसको तोड़ने के लिए जाते हैं संजीवनी को, तो मना कर देते हैं सुसेन वैद्य जी। क्या कहते हैं कि भी रुक जाओ, ये डिवाइन चीजें हैं, इनको ऐसे नहीं लिया जाता, इनको नमस्कार करके लिया जाता है, राइट। इसी तरह से 706 का ओएमपी पैराग्राफ है, बिल्कुल संजीवनी की तरह काम करता है। इसको एप्रोप्रिएटली अगर यूज किया जाए, मिसयूज करोगे तो नहीं करेगा, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, मैंने आपको बताया बैंक ब्रांच ऑडिट के अंदर, मुकेश श्रीवास्तव जी इस बात को एंडोर्स करेंगे चलते हुए, कि कई ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, कई ऐसे हेड्स हैं जिनका ट्रेल नहीं मिलता ऑडिट का। जैसे हेड ऑफिस अकाउंट का ट्रेल नहीं मिलता, हेड ऑफिस इंटरेस्ट का ट्रेल नहीं मिलता, कहते सब ऊपर वाले देखते हैं, क्या कहते सब ऊपर वाले देखते हैं। इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट का नहीं मिलता, ड्राफ्ट अकाउंट का नहीं मिलता। कल को उसके अंदर कोई फ्रॉड पार्क हो रखा हो, हाउ कुड वी एज ए ब्रांच ऑडिटर नो, क्योंकि उसका तो ऑडिट ट्रेल ही नहीं है हमारे पास कोई। तो आई ऑलवेज जॉट डाउन दोज हेड्स राजेश भाई, ये 3-4 हेड है हर ब्रांच ऑडिट में होते हैं, और मैं लिखता हूं अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, ये 3 ऐसे हेड्स हैं, इनके कोड ये हैं जिसका कोई भी हमें ऑडिट ट्रेल ब्रांच लेवल पर अवेलेबल नहीं कराया गया है, एंड वी आर अनेबल टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इट हैज केप्ट इन दीज अकाउंट्स। हमने क्या दे दिया, डिस्क्लेम कर दिया उस हेड को, क्योंकि उसका ऑडिट ट्रेल नहीं मिला मुझे। कल को कोई फ्रॉड होता है तो हमारे राजेश भाई एडवोकेट होते कहेंगे योर ऑनर सी the auditor has already asked for the information from the branch and they didn't have the information, that's why they have disclaimed this head। बचा लोगे ना सर? बिल्कुल बचा लोगे। ये तो बिल्कुल, मतलब ये संजीवनी है नहीं है, बताया बिल्कुल ठीक बात कई है सर। ऐसी चीजें हैं जो ब्रांच ऑडिट में हमें नहीं मिल रही है। हम लिखते हैं ब्रांच ऑडिटर्स के अंदर कि माइंड इट अवर रिपोर्ट इज ओनली, जबकि हमने ऊपर एड्रेस भी कर दिया, फिर मैं स्पेशली लिखता हूं our report is only meant for the statutory central auditors, as these are not the complete financial statements of the branch due to many adjustment to be done at the head office level subject to and read with the MOCs and all other things। इसका मतलब ऑल लिमिट कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया कि ये जनरल यूज के लिए नहीं है, नॉट यूज एज जनरल पर्पस। थर्ड ओएमपी की बात कर रहा हूं सर, अदर मैटर पैराग्राफ की। तीसरा मैं लिखता हूं माइंडेड we have relied upon the opening audited balances of the branch, अगर वो audited हुई है, as we were not the previous auditors of this branch, so we have relied upon the audited balance sheet। और अगर वो unaudited branch है तो स्पेशली लिखना है कि we have relied upon the unaudited opening balances of the branch, as the branch was not required to be audited। Yes sir, yes sir। आप अपनी लिमिट आप लिख रहे हो कि क्या क्या चीजें,
आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज उसमें आप डाल दोगे, लेकिन जो चीजें उसमें डालनी चाहिए उसको तो जरूर डालो आप, जरूर डालो सर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं। एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स मैंडेटरी है ऑडिटर्स के लिए, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स देखना सर, मैंडेटरी वर्ड यूज कर रहा हूं सर मैं, क्योंकि दिस रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट का पर्पज ही है, ऑडिट के लिए क्रिएट की जाती है रिपोर्ट। और प्रैक्टिकली क्या होता है राजेश भाई, कहीं भी ब्रांच में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं होती है, वो कहते हैं हम प्रिंट ही नहीं करते सर, प्रिंट ही नहीं करते। इट इज द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड कि वो उसको प्रिंट करेंगे और साइन करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो उनको प्रिंट करके, प्रिंट का मतलब फिजिकल प्रिंट से, प्रिंट कैन आल्सो बी सॉफ्ट प्रिंट विद डिजिटल सिग्नेचर, नो डाउट अबाउट इट, बट इट मस्ट बी अवेलेबल टू द ऑडिटर्स। और अगर वो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हमें नहीं मिल रही हैं, अगर हमें नहीं मिल रही तो क्या करेंगे हम? सिंपल सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे, उसको भी ओएमपी में ले जाएंगे कि एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स हमें अवेलेबल नहीं कराएंगे। तो इस तरह से हम अपनी जितनी भी स्कोप लिमिटेशंस जहां पर हमारे आ रहे हैं, वी मस्ट एड्रेस दोज, और उससे बहुत सी चीजें। और एक आपसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के और विनती है कि जैसे अभी किसी ने कहा था एमओसी, एक 5 साल पहले एक डेटा आया सर जी, जो कि फ्लोर पे गया राज्यसभा में, विच वाज डिस्कस्ड एट द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसमें ये कहा गया कि only in 3% of the audited branches of the public sector banks MOCs are suggested by the auditors, statutory branch auditors. 3%. अब आप बताएं, अगर आप रेगुलेटर हो, आप पॉलिसी मेकर हो, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इसका मतलब जो बैलेंस शीट हमने पुश कर दी 31 को या 1 को, इट इज बीइंग एक्सेप्टेड एज इट इज, नंबर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हो सकते हैं उसके इंटरनल कंट्रोल्स भी को आपने लिख दी हो LFAR के अंदर। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, LFAR इज नॉट रेड टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी पब्लिश हो जाती है, ईच एंड एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक इज लिस्टेड नाउ, विद इन 60 days एज पर सेबी रेगुलेशंस सारी बैलेंस शीट पब्लिश हो जाती है। आपके LFAR कंपाइल होते हैं उसके बाद, जून और जुलाई के महीने। जो सेंट्रल ऑडिटर इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि उसके बाद उनको तब वो टाइम मिलता है कि चलो अब इसके इंटरनल देख लें। तो LFAR में आप कुछ लिख रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस वो नहीं है जो होना चाहिए। और अगर LFAR में बहुत सी प्रॉब्लम है तो नंबर्स आपकी क्यों नहीं हिलेंगे? सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं आपकी मैन ऑडिट रिपोर्ट कब मॉडिफाई होगी? मॉडिफिकेशन का मतलब या तो क्वालिफाइड होगी या एडवर्स होगी। किन सर्कमस्टांसेस में होगी? जब आपके किसी भी ऑब्जर्वेशंस की वजह से, किसी भी डिस्क्लेमर्स की वजह से ये नंबर्स हिल रहे हो, इन नंबर्स पे इंपैक्ट आ रहा हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है या बैलेंस शीट के अंदर। अगर इन नंबर्स में कोई आप डेविएशंस आ रहा है या आ सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन से, इसका मतलब आपको कॉल लेने की जरूरत है कि रिपोर्ट को आपने कैसे देना है, कैसे मॉडिफाई करना है। अगर लिमिटेड इंपैक्ट आ रहा है तो आप क्वालिफाई करेंगे, अगर परवेसिव इंपैक्ट आ रहा है तो आप एडवर्स करेंगे। एंड बिलीव मी राजेश भाई, इन लास्ट 20 years अराउंड, बल्कि 22 साल हो गए मुझे बैंक ऑडिट करते हुए, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि पहले मेरा इटावा ऑफिस था, नाउ इट इज इन नोएडा, तो नोएडा भी कूलिंग में नहीं है। कम से कम नहीं तो मैंने 50% ब्रांचेज में एडवर्स ओपिनियन दी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं हम इंडिपेंडेंट हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगली साल ऑडिट ना आया हो। ये हो सकता है कि आपको और रिमोट प्लेस में दे दिया गया हो, और मुझे जितना रिमोट प्लेस में भेजा जाता है, आई एंजॉय दैट। उसका मैं रीजन बताता हूं आपको कि रिमोट प्लेस में आपको एग्रीकल्चर ब्रांच मिलती है, और एग्रीकल्चर ब्रांच का ऑडिट बहुत इजी है सर। मैं कहता हूं मुझे 4 घंटे दे दो एग्रीकल्चर ब्रांच में, ज्यादा नहीं चाहिए। I would be able to make my opinion adverse with the adequate evidences. एविडेंस चाहिए उसकी मुझे बस 4 घंटे में समाप्त हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि उसमें पैटर्न एक ही होता है। एग्रीकल्चर है, किसान क्रेडिट कार्ड है, एक ही आपको वो तरीके से मिलेगा सारा। जब आपकी कॉर्पोरेट ब्रांच है तो ईच एंड एवरी अकाउंट बिहेव्स इन ए डिफरेंट वे। क्यों राजेश भाई? एक राजेश भाई का है, एक किसी और का है, एक सुरजीत जी का है, एक भरतिया जी का है, सबके अलग अलग नेचर है। आप राजेश जी को, भरतिया जी को एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्रीकल्चर ब्रांच है तो भरतिया जी का भी अकाउंट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे राजेश भाई का करे। तो आपको केवल बिहेवियर देखना और बिहेवियर के बेस पे अपनी फाइंडिंग्स निकालनी है। लेकिन
कॉर्पोरेट ब्रांचेज में जहां इंडिविजुअल अकाउंट्स अलग अलग नेचर के होते हैं, वहां थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगता है, हर ईच यू हैव टू सी ईच एंड एवरी फाइल। और एग्रीकल्चर ब्रांचेज में जो मैंने आपसे बात की, हार्डली जो डिक्लेयर्ड एनपीए होते हैं सर 2 या 3% या 5% होते हैं। कोई बहुत ज्यादा जंप मारेगा तो 10% कर लेगा, और ज्यादा मारेगा तो 15 कर लेगा, 20 कर लेगा। और जबकि उसके अंदर राजेश भाई मैं बताऊं आपको 80% एनपीए होते हैं, 80%, माय गॉड, 70%, 60%। और मैंने ये सब चीजें फेस की हैं और लिखा है। फिर तो सर कई बैंक के ब्रांच मैनेजर सस्पेंड हो गए होंगे आपके द्वारा। नहीं हुए, बताए रीजन उसका, क्योंकि हाँ। उसमें आकाज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ ये बात है। एक बार एक जरूर बड़ी प्रोमिनेंट बैंक की रिपोर्ट मेरी पहुंची बोर्ड तक। जी। अब छोटे से कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट बोर्ड में कहीं डिस्कस होती है जाके, बोर्ड लेवल पे डिस्कस हुई, एंड आई वाज वर्चुअली समन्ड। जैसे सम्मन नहीं आता है हाँ गवर्नमेंट का, जी जी जी। समन आया है। मैं बिल्कुल आपसे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। 5 GMs were sitting in a single cabin watching at me with बिल्कुल रेड फेस कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह जुर्म कर दिया। तो द मोमेंट आई एंटर्ड इन, तो मुझे पता था कि अभी ये बरसने वाले हैं, तो बरसने वाले बादल को पहले ही शंख बजाना ज्यादा ठीक है, राइट। मैंने कहा सर बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग और कम्युनिकेटिंग एनीथिंग, एक सबमिशन है मेरा सर, आई हैव पोलाइट सबमिशन। हाँ बताइए बताइए। मैं इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट लेके गया था। मैं आपको बात कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र की, अब कि किस लेवल पे चलाया जाता है जब 5 GM बैठे हो, वो भी टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक। मैंने कहा सर एक हमारा स्टैंडर्ड है 240, जिसको ट्रांसपोज करते हैं तो 420 हो जाता है, 420। उसका A1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ केवल आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो डिस्कस करना चाहें कर सकते। और वो पैराग्राफ क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। A1 तरीके से लिखा हुआ है वो पैराग्राफ राजेश भाई है, इफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड with the intention to deceive the users of it, it is nothing but the fraud. It is nothing but the fraud की मीनिंग आईपीसी में बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, आरबीआई का सर्कुलर फ्रॉड पे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। वो कब मानता है फ्रॉड, जब कोई एम्बेजलमेंट हो जाएगा किसी एसेट का एम्बेजलमेंट के बिना आरबीआई फ्रॉड नहीं मानता। नहीं मानता। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मान सकता है, फ्रॉड नहीं मानेगा। फ्रॉड डिक्लेयर तभी करेगा जब डूब गया होगा, जब तक डूब रहा होगा तब तक कुछ नहीं करेगा, जब चला जाएगा देश के बाहर तभी करेगा। जी सर, जी सर। राइट। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हैं तो वो फ्रॉड है। राजेश भाई यू वुड नॉट बिलीव कि जो उनके रेड चीक्स थे ना वो व्हाइट हो गए थे पढ़ने। अराउंड 30 minutes I seated over there, nobody discussed about the report। इधर उधर की बातें, लास्ट में मैंने लेट्स मूव सर। तो अग्रवाल साहब हम तो वो जो क्या कहते वो नमाज जो डेली पढ़ते हैं उसमें छूट लेने आए थे, आप तो कहते हैं रोजा रख लो। रोजा रख लो। तो गले पड़ गए। बिल्कुल फ्लैट। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, हनुमान है, शक्ति पता होनी चाहिए सर। चलते हुए उन्होंने एक चीज जरूर पूछी राजेश भाई हमसे, सर इस मैटर को एस्केलेट तो नहीं कर रहे? दिस दैट्स द मैसेज, आर यू नॉट इन टू मूव टू एस्केलेट दिस मैटर। मैंने कहा आप लोगों से मिल लिया तो मैं आई विल हैव टू रिकंसीडर, अदरवाइज मेरा मन तो यही था। सो रीजन में जब once I entered into branch only 3% declared NPA, once I jotted down all the things more than 50% branches were NPA। Oh my God। एक नहीं दो नहीं तीनों ब्रांच। मैंने व्हाट आर यू डूइंग। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा एक बहुत बड़ी चीज, जो एक रिसर्च की चीज है जिसको बैंक वाले दिखाते हैं क्रॉप लोन में। वो कहते हैं कि क्रॉप लोन हमारा 36 महीने में, 48 महीने में, कोई बैंक का तो 60 महीने में एनपीए होगा। हम कहते हैं तेरा 10 साल में एनपीए होगा। मैं नहीं मानता। मेरा गाइडेंस नोट आईसीआई का जो कहता है आई डू इंडोर्स दैट व्यू कि 21 महीने में शॉर्ट टर्म क्रॉप और 27 महीने में लॉन्ग टर्म क्रॉप एनपीए हो जाती है। उसके लिए एक वो बैंक यूपी की अगर बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द बेसिकली स्पॉन्सर बैंक।
वो क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, देखो यू सी कि क्या लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा की SLBC ने, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी ने, उन्होंने क्रॉप लोन की सीजन को डिफाइन किया। बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, सीजन को डिफाइन किया। और सीजन में उन्होंने क्या डिफाइन किया कि आपने फसल बोई राजेश भाई, आपने फसल काटी और आपने फसल बेची, इस सब में आपको टाइम लग गया 12 महीने बेचने तक। तो उन्होंने कहा 12 महीने एक बार लग गया, फिर 12 महीने दूसरी बार लग गया, तो 24 महीने हो गए, राइट। और 12 महीने के लिए तो आपने दिया ही था, तो 36 महीने हो गए। पहली चीज तो ये गलत है कि जब 12 महीने पहले खत्म हो गए तब दूसरी 12 महीने चालू होंगे। नो, बिग नो, पैरेलल चलेगा आपका। एक फसल आपकी कटने के बाद दूसरी फसल बो दी जाती है, ऐसा नहीं कि जब वो बिक के आ जाएगी तब दूसरी बोई जाएगी। सेकेंड कैच मैं आपको बता रहा हूं, बहुत माइन्यूट कैच है। RBI ने क्या कहा है, RBI has given the authority to SLBC to decide the crop season up to the harvesting। उन्होंने कहा आप हार्वेस्टिंग तक का क्रॉप सीजन डिसाइड करोगे। इन्होंने क्या किया सर, मार्केटिंग तक का क्रॉप सीजन डिसाइड कर दिया। सो इवन द SLBC है, मैंने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर, SLBC हैज बियॉन्ड इट्स डेलीगेटेड अथॉरिटी गिवन बाय द RBI। हमने आपको, जब RBI ने आपको बोला है कि आप केवल क्रॉप सीजन डिसाइड करेंगे हार्वेस्टिंग तक का, व्हाई आर यू एडिंग मार्केटिंग पीरियड इनटू दैट, फॉर व्हाट पर्पज? क्योंकि जब आपका पर्पज ही डिसाइड करने का केवल NPA की रिकॉग्निशन के लिए, और कोई पर्पज नहीं है उसमें। नहीं सर, इसमें एक पॉइंट है हाँ, कि जब तक फसल क्रॉप सेल नहीं होगी तो आपकी रिकवरी कैसे होगी सर? वो तो हम पहले ही टाइम दे रहे हैं आपको, हम तो NPA के लिए बता रहे हैं। पहला आपको टाइम पूरा दे रहे हैं कि जब आपकी फसल बोई जाएगी, उसके बाद कटेगी, उसके बाद बिकेगी, तब आप हमारा पैसा जमा करा दो जी, राइट। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने जमा नहीं कराया, आप बेच के खा गए, तो हम आपको 2 क्रॉप सीजन का और एडवांटेज दें। ओके ओके, तो उन 2 क्रॉप सीजन में आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो 21 महीने में, और हमारा जो गाइडेंस नोट ICAI का आप देख ले एग्रीकल्चर एडवांसेस पर, उसमें उन्होंने डेट वाइज दिखाया हुआ है कि किस तरह से रबी खरीफ बिकती है। तो ये मेरे सभी फ्रेंड्स को एडवाइस है 21 महीने और 27 महीने, लॉन्ग टर्म 27 महीने, शॉर्ट टर्म 21 महीने। इसके बाद ये लोन खराब हो जाते हैं, लोन से लोन पे हो जाते हैं, वो सब NPA है। एग्रीकल्चर में क्या नहीं होता, यू डोंट आस्क मी। सेम डे डिपॉजिट, सेम डे विड्रॉल। राजेश भाई, मैंने वाउचर्स निकलवाई एक ब्रांच में, डिपॉजिट और विड्रॉल में 3 सेकंड का फर्क, क्योंकि उसमें वाउचर पे टाइम लिया आता है CBS में। मैंने कहा आप लाइव एनवायरनमेंट में ये ट्रांजैक्शन करके दिखा दो 3 सेकंड के अंदर, नोट काउंट भी कर दो तो अभी मैं मान 3 जाऊं। सेकंड में आप यू जस्ट गिव मी द लाइव डेमो इन 3। हम ये भी मान रहे हैं कि आपका एक ही काउंटर पे डिपॉजिट भी, और पहली बात तो है ही नहीं, डिपॉजिट का काउंटर अलग है और पेमेंट का अलग होता है, बिल्कुल। एंड यू डेमोन्स्ट्रेट दिस ट्रांजैक्शन, इट इज नथिंग बट फ्रॉड। आप इसके डिनोमिनेशन दिखा दो मुझे नोटों की। What is fraud with the bank officers, cashier? Yes. तो Without his involvement, it is not possible. तो ये सब चीजें फ्रेंड्स ध्यान देने वाली हैं। अब मैं आपके साथ चलता हूँ ब्रांच से पहले हमने क्या किया, ये तैयारी कर ली, गाइडेंस नोट पढ़ लिया इंस्टीट्यूट का, बैंक एनुअल रिपोर्ट निकाल ली, उससे उसके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देख ली, उसके की ऑडिट मैटर्स देख लिए सेंट्रल ऑडिटर्स के, एक चेयरमैन का एड्रेस भी देख लिया, क्योंकि जो लीडर होता है उसकी बहुत कुछ से होती है बैंक में। आप देखोगे कई बार जब CMD बीच में चेंज होते हैं तो अगले क्वार्टर में NPA फ्लक्चुएट करते हैं, तो क्या वो NPA लेके आते हैं या लिक्विडेट करा देते हैं? कुछ नहीं, वो उनकी लीडरशिप है कि वो क्या चाहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं या नहीं चाहते। तो लीडरशिप का लेटर पढ़ने से काफी कुछ लीडर के बारे में पता लग जाता। तो CMD का 2 पेज का लेटर होता है, वो पढ़ लेता हूँ। ये मेरी तैयारी हो गई सर। अब मैं गाइडेंस नोट पूरा देख चुका हूँ, सब कुछ। लास्ट ईयर अगर हम कंटिन्यूइंग ऑडिटर है तो पिछले साल की फाइल जरूर देखिए। उसका फायदा क्या होगा कि कई सर्कुलर्स आपने पिछले ऑडिट में लिए होंगे जो डेड कस्टमाइज सर्कुलर है बैंक के, वो आपकी फाइल में लगे होंगे। अगर आप सेकंड ईयर में तो 1 साल का होगा, 4th ईयर में तो 3 साल के लगे होंगे, तो वो आप सारे सर्कुलर वहां से निकाल के नई फाइल में लगा लीजिए, राइट। उनको देख लीजिए कि क्या सर्कुलर है। एक बैंक का पोर्टल जरूर विजिट करिए सर। अब मैं अभी ब्रांच में चलने वाला हूँ, बस उसके पहले की तैयारी करा रहा हूँ। पोर्टल जरूर विजिट। पोर्टल किस लिए विजिट करते हैं कि उसके हर बैंक के अपने कुछ कस्टमाइज्ड डिपॉजिट्स हैं, कस्टमाइज्ड एडवांसेस हैं, तो उसकी जो नॉमिनक्लेचर है वन मस्ट बी वेल मस्ट, कि हमें पूछना ना पड़े कि ये क्या एडवांस है। तो जितने डिपॉजिट्स के उनके प्रोडक्ट्स हैं और जितने एडवांसेस के प्रोडक्ट्स हैं
वो हम उससे देख सकते हैं और उसको अगर हमें चाहे तो अपनी डॉक्यूमेंट्स में लगा भी सकते हैं। अब सब हम ब्रांच चलते हैं राजेश जी को साथ लेके। अब तिलक देख के तो वैसे खुश हो गए कि ये राधे राधे वाले हैं, राइट। ब्रांच चलते हैं सर। और ब्रांच जाने से पहले कुछ चीजें और है, अगर आप बाहर की ब्रांच में जा रहे हैं तो कुछ तैयारी जरूर करके जाएं। देखो अनलेस यू हैव, वैसे तो सभी लोग अब कहने वाली बात नहीं है, अपने साथ मशीन लेके जाते हैं। मशीन का मतलब हियरिंग मशीन से नहीं है सर, लैपटॉप लेके जाते हैं। लैपटॉप लेके जाते हैं, आपके पास नेट भी है, आरबीआई सर्कुलर्स भी है, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट भी है। अगर बैंक ब्रांच ऑडिट में किसी ने टैक्स ऑडिट दे रखा है तो बोनस है आपके लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, माइंडेड। तो आपके पास 44A एक का भी गाइडेंस नोट है, लेटर हेड है, स्टेशनरी है, स्टैम्प्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें और है, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने आर्टिकलशिप टाइम में करते थे कि क्लाइंट के यहाँ जाके कहते थे सर स्टेशनरी मंगवा दो। वी शुड नेवर आस्क सर। राजेश भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी सर, जी सर। ऑलवेज कैरी योर स्टेशनरी विथ योर। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता नहीं, तो आप वहां जाके राइटिंग पेन मांगते हैं। आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस और हैबिट्स, राइट। तो अब हमने पूरा तैयारी कर ली, अब हम चलते हैं राजेश भाई के साथ। तो बैंक में जाते हैं सबसे पहले तो आप ऑफ कोर्स इनकमेंट की तरफ जाओगे। आपकी बल्कि ऑब्जर्वेशन बाहर से ही स्टार्ट हो जाती है, अपकीप से, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घोष जलानी में है, वो अपकीप के बारे में पूछते हैं कि ब्रांच ठीक से मेंटेन है या नहीं। तो ऑडिट तो आपका बाहर से घुसते ही शुरू हो जाता है सर, कितनी सफाई है, क्या है क्या नहीं है। उससे क्या है, ब्रांच हेड का पता लग जाता है सर। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि किस तरह का उनका, कितने कैजुअल है, कितने डिसिप्लिन्ड है। आप जाते हैं इनकमेंट के केबिन में बैठते हैं आप जाके, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं देना, अपना तो बस यही देना कि मैं राजेश अग्रवाल और मैं तो सर टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, और अब की बार हमारे पार्टनर आ नहीं पाए तो मैं आ गया बस। तो ये बैंक ऑडिट में मेरा तो ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि आपको कुशन देना है, कंफर्ट लेवल देना है सामने वाले को, इतना इससे ज्यादा नहीं बोलना राजेश भाई। उसके बाद आधा और 1 घंटे उन जेंटलमैन को सुनना है आपको, क्योंकि वो भरे बैठे होते हैं, कहते हैं ना भरे बैठे हैं, कस्टमर से भरे बैठे हैं, रेगुलेटर से भरे बैठे हैं, अपने ऑफिस ऊपर वालों से भरे बैठे हैं, तो वो आपको सब सुनाएंगे अपनी मन की। सो वन मस्ट बी वेरी गुड इन हियरिंग ऑल्सो, क्योंकि उससे एक ट्रस्ट बिल्ट होता है आपका। जब आप उनको पेशेंसली सुनेंगे उनकी, फिर आपको क्या करना है सर, आपकी चाय वाय हो गई ना राजेश भाई? यस सर, यस सर। हो गई चाय वाय, हो गई, नाश्ता वास्ता चल रहा है, तो आपने कहा भाई ऑफिसर से इंट्रोडक्शन करा दें। तो इंट्रोडक्शन के लिए ऑफिसर को बुलाएंगे, तो आपने क्या करना, अपनी ऑडिटर्स की नजर से देखना है कि उसमें पीए कौन है। पीए का मतलब परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि 80% आपको एनपीए मिलेंगे वहां। तो पीए क्यों चाहिए? क्योंकि आपने अपना काम करवाना है। तो आपने पॉइंट आउट कर लिया, और आपके बच्चे भी उसी तरह से लगे हुए कि पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्लर्क, अरे साहब, अरे भाई साहब आप छोड़ो, ऑफिसरों को छोड़ो, ये वाला क्लर्क है ना, ये 10 साल से ब्रांच में बहुत एनर्जेटिक, बहुत डायनेमिक है, सब लोग इसी से कस्टमर आके बात करते हैं। तो आपको एक बंदा पीए मिल गया सर, जो आपके बहुत काम आने वाला है, और 2 मिल गए तो बोनस है आपके लिए, नहीं तो 1 तो मिल ही जाएगा। बिलीव मी, हर ब्रांच में एक बंदा ऐसा होगा जो पूरी ब्रांच चला रहा है, छोटे लेवल की, अगर छोटी ब्रांच है, लार्ज ब्रांच की मैं बात नहीं करता, चला रहा होगा ना सर। हमने उसी पीए को पकड़ना है, उसी पीए को। कई बार हो सकता है इनकम्बेंट एनपीओ, तो आपका चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो वो आपने पकड़ लिया, उसके बाद घंटे 2 घंटे आपने सुन लिया, सारी इंट्रोडक्शन हो गई, मीटिंग हो गई, चाय नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि सर लास्ट ईयर जो आपके ऑडिट्स हुए होंगे, तो उनकी फाइल वाइल दिखा दो। तो सिंपल जब आंसर होता है, लास्ट ईयर कोई ऑडिट नहीं हुआ राजेश भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सीधा आंसर, लास्ट ईयर तो कोई ऑडिट हुआ नहीं सर। स्टैट्यूटरी ऑडिट आए होंगे, हाँ स्टैट्यूटरी तो आए थे, अब पता नहीं उनकी रिपोर्ट, तो कोई बात नहीं साहब, रिपोर्ट उनकी निकलवा दें लास्ट ईयर वालों की। और कंप्लाइंस तो आपने कर दी, हाँ सारी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि हर बैंक में जो भी ऑडिट होता है उसकी कंप्लाइंस जरूर होती है, और वो फाइल क्लोज जरूर होती है, उसमें क्लोजर जरूर आता है। तो आपने एक एक करके रिपोर्ट्स निकलवानी है, तो बाद में पता लगेगा कि पूरे 12 महीने में 7-8 ऑडिट हुए हैं। कॉन्करेंट भी हुआ है, स्टॉक ऑडिट भी चल रहा है, इंटरनल भी है, आरबीआई रिस्क बेस्ड इंटरनल है, अलग अलग नॉमिनक्लेचर हो सकती है, और स्टैट्यूटरी तो है ही। अब राजेश भाई, पहले फिजिकल फाइल होती थी तो इतना बड़ा बेंच बन जाता था, अब लोग देख के हैरान कि यार इतने सारे पेपर देखेंगे कैसे। अब नॉर्मली सॉफ्ट फॉर्म में होता है, तो वो थोड़ा सा आपकी लाइजनिंग करनी होती है कि आप एक फोल्डर बना लीजिए, सॉफ्ट में डालते जाइए। अब वो जिस 6 या 7 रिपोर्ट मिलती हैं मुकेश जी,
उसमें हमें पीए ढूंढना है। आज हमारी बात पूरी पीए एनपीए पे रहेगी सर। उसमें पीए ढूंढना है कि उन 7 ऑडिटर में परफॉर्मिंग ऑडिटर कौन थे। एक ना एक जरूर मिल जाएगा। अगर बहुत ही हमारी किस्मत खराब है तो हो सकता है सारे एनपीए मिल जाए 100%, नहीं तो एक तो पीए मिलेगा सर। और वो पूरी ब्रांच का आइडिया दे देगी रिपोर्ट आपको। वो रिपोर्ट पूरी ब्रांच का आइडिया दे देगी। आपने पलटनी सारी रिपोर्ट्स हैं। बिलीव मी, ये रिपोर्ट्स पलटने का काम केवल जो ऑडिट इंचार्ज है उसको करना चाहिए। बच्चे देख सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जो रिपोर्ट साइन कर रहा है उसको देखना चाहिए क्या क्या उन रिपोर्ट्स में डिस्क्लेमर्स हैं, कहाँ सीरियस डेविएशंस हैं, क्या डिस्क्लेमर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उनकी कंप्लायंस की गई, कितनी कैजुअली और मेटिकुलसली कंप्लायंस की गई। राइट सर, वहां से हमारा काम शुरू हो जाता है और उस ब्रांच का पूरा हमें था मिल जाती है कि हमारा फोकस एरिया क्या होगा। बाकी तो ब्रांच ऑडिट का बहुत अच्छा 9 पेज का एक ऑडिट प्रोग्राम। देखिए गाइडेंस नोट बहुत टाइम से आ गया है। उसमें एक अपेंडिक्स ए है जो सेंट्रल ऑडिटर्स के लिए, अपेंडिक्स बी है जो ब्रांच ऑडिटर्स के लिए। ब्रांच ऑडिटर्स के अपेंडिक्स में एक 9 पेज का ऑडिट प्रोग्राम बहुत बढ़िया से पॉलिश्ड वे में रखा हुआ है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि दैट ऑडिट प्रोग्राम शुड बी यूज्ड बाय ईच एंड एवरीबॉडी फॉर द पर्पज ऑफ पीयर रिव्यू आल्सो। क्योंकि अभी पीयर रिव्यू का भी एक गाइडलाइंस आ गई है कि 1425 से ईच एंड एवरी ब्रांच ऑडिटर्स विल बी कवर्ड अंडर पीयर रिव्यू। हालांकि मेरे हिसाब से वो पहले भी थे, लेकिन चलो अब राइटिंग में आ गया। तो वो 9 पेज का जब आप प्रोग्राम फिल कर लेंगे, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। 9 पेज तो किताब के फॉर्म में अगर देखेंगे तो 2-3 पेज का प्रोग्राम इफेक्टिवली है। उसको जरूर टिक कर लीजिए। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बैंक में जब ब्रांच में जाते हैं तो कैश इन हैंड जरूर देखना चाहिए। अब कैश इन हैंड को देखना कैसे चाहिए राजेश भाई? क्या होता है जो लोग ज्यादा फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं, मतलब कुछ दिखाते हैं ऑडिटर, हाँ, जाके पकड़ लिया कैशियर को, छोड़ दो बस हाँ। यहीं रुक जाओ, कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं, यहीं रुक जाओ बस, हाथ दबा दिया अब यहीं गिनवा दो। नेवर डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपको ब्रांच में बिहेवियरल अप्रोच के साथ करना है। कुछ ऐसी जगह है जहां आपको पूरा क्वेश्चन देना है उनको, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपके ऊपर। आप कहोगे ऐसा है श्रीवास्तव जी, जब आपका कैश क्लोज हो शाम को तो एक बार टैली करके हमें मैच करा दो, हमारे साइन करा देना। आपने कितना पॉजिटिव मैसेज दे दिया सर उनको कि आप अपना मैच करके और हमसे साइन करा दें। क्योंकि हमें उसमें बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, वो टैली मिलेगा। तो वहां हमने क्वेश्चन देना है उनको, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि यार मुकेश जी तो बहुत भले आदमी, खुद ही कह रहे कि मैच करके या फिर हमारे साइन करा। सर उनको भी पता होता है कि ऑडिटर आने वाले हैं, कैश को तो कम से कम टैली करके रखूं। कैसे नहीं रखते सर? देखो सर, बैंक ब्रांच में कैश बुक कैश बंद तभी होगा जब कैश टैली हो। यस, नॉर्मल सरकमस्टेंस है। एक आध बहुत एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रूम में पैसे नहीं हो, कैश बुक में पड़े हो। ये तो लाला ही क्या हो सकता है। सर एक चीज पूछनी थी, ये आपने अभी घोष जिलानी का जिक्र किया सर, तो इसकी क्या रेलिवेंस है? कैनरा बैंक ने तो स्क्रैप कर दी हुई है ये। नहीं बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। इसमें कई क्लॉजेज ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी आने के बाद वैसे ही आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी आपने बात कर दी, बहुत अच्छी बात कर दी सर। तो इस बार भी इंस्टीट्यूट ने उसमें, क्योंकि घोष जिलानी में कुछ ऐसी क्लॉजेज है जिसमें अगर हमने यस कर दिया बहुत रिस्की क्लॉजेज है, बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, बहुत दिक्कत खड़ी हो। तो आप कभी मत माने कि हमने यस नो से ही काम चलाना। आप नॉट एप्लीकेबल, अनेबल टू कमेंट भी लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि घोष और जिलानी के लिए राजेश भाई अलग से फॉर्मेट दिए गए हैं कि इसके साथ में आप अपनी ये ओपिनियन और लगाएं कि घोष जिलानी में हमने ब्रॉडली ब्रांच मैनेजमेंट पे रिलाई किया है। वी हैव अप्लाइड सम ऑडिट टेस्ट बट वी हैव नॉट थॉरोली सीन इट। बहुत बढ़िया से गाइडेंस नोट के अंदर 2 रिपोर्ट्स दी गई हैं, घोष जिलानी के लिए अलग और सर्टिफिकेट के लिए अलग। वी मस्ट यूज दोज रिपोर्ट्स। ये मैं छोटी छोटी चीजें आपके इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ये निकल जाती हैं सर। नहीं बट सर आरबीआई ने इसको एक बैंक को अलाउ क्यों कर दिया कि वो स्क्रैप कर दे और बाकी बैंक्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई के कुछ सर्कुलर सर ऐसे हैं जो प्रिंसिपल बेस्ड सर्कुलर है। उन्होंने बैंक को पूरा रूल बेस्ड नहीं बनाया। उन्होंने आपको लिबर्टी दे दी कि आप अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पॉलिसीज यू कैन डेवलप योरसेल्फ। हमें तो ये चाहिए कि आपकी आईएफसी ओपिनियन जो है ऑडिटर्स की, अभी उन्होंने मार्च 20 में एक सर्कुलर दिया है, उसमें कह दिया कि हमें आईएफसी ओपिनियन आपकी चाहिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। और उस अगर देखें उस अम्ब्रेला के अंदर एवरीथिंग इज कवर्ड, चाहे घोष जिलानी हो चाहे कोई और हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपके रोबस्ट हैं तो नथिंग कैन हैपन। ये जितनी हैपनिंग्स हो रही है
सब IFC की दिक्कत है, हर जगह इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कहीं ओवरलैपिंग हो रही, कहीं कुछ हो रही, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो कई क्वेश्चन उसमें आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी अपनी स्किन को सेव करने के लिए उन रिपोर्ट्स को यूज करें। सर्टिफिकेट के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया है फॉर्मेट कि ऑडिटर्स रिपोर्ट को ये सजेस्ट सर्टिफिकेट के साथ ये वाला रिपोर्ट जरूर लगानी चाहिए। उसका रीजन यही कि सर्टिफिकेट जब भी होता है तो ट्रू एंड करेक्ट का होता है सर, और ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं। तो अगर मुकेश भाई कोई सर्टिफिकेट देंगे और गोपाल जी देंगे तो अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस सर्टिफिकेट डिफरेंट नहीं हो सकता, ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है सर। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है मुकेश जी का एक्सपोजर मुझसे ज्यादा हो, उनकी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट में ज्यादा हो। आप देखें एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन से डेविएट कर सकता है ना, ओपिनियन होती है वो जजेस की। लाइकवाइज ऑडिटर्स की ओपिनियन होती है जब आप ऑडिट करते हो, लेकिन सर्टिफिकेट में आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हो। सर्टिफिकेट डिफरेंट नहीं हो सकते, ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस हो सकता कि मेरी ओपिनियन एडवर्स हो जाए, मुकेश भाई कह नहीं ये तो क्वालिफाई से हो जाए, या वाइस वर्सा। तो उन चीजों को ध्यान रखना है सर। तो उसमें उन्होंने राजेश भाई क्यों दिया वो सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा है कि वैसे तो सर्टिफिकेट का मतलब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बट कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस वी हैव अप्लाइड द टेस्ट चेक्स ऑन। हम सर्टिफिकेट में लिख रहे हैं कि हमने टेस्ट चेक किए केवल, क्योंकि 100% पॉपुलेशन आप चेक नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कोई भी ऑडिट टूल लगा लें तब भी 100% नहीं कर सकते आप, चाहे मैनुअली तो हो ही नहीं सकता, आप ऑफ कोर्स थ्रू दी कंप्यूटर करेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा स्किन सेवर है हमारे लिए, वो रिपोर्ट एक स्किन सेवर है हमारे लिए कि हम सर्टिफिकेट के ऊपर एक रिपोर्ट लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने टेस्ट चेक अप्लाई किए हैं, वी हैव रिलाइड अपॉन द सिस्टम। और अगर उस सिस्टम्स में कहीं दिक्कत दिखती है तो वी हैव टू एप्रोप्रिएटली डील विद द सर्टिफिकेट्स आल्सो। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट का ये मतलब नहीं है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर बाउंड टू साइन इट। अगर आपको उसमें गलतियां मिलती हैं तो आपको साइन करना है, लेकिन डिस्क्लेमर्स के साथ साइन करना है, आपने मॉडिफिकेशंस के साथ साइन करना है, आपने क्वालिफिकेशंस के साथ साइन करना है सर। यू हैव टू राइट योर रिमार्क्स। और इसका मैं बहुत लाइव एक एग्जांपल बताऊं, राजेश भाई बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आ गया। आरआरबी के मैं सेंट्रल ऑडिटर था, तो उसमें उन्होंने पीछे सब्सिडी गलत क्लेम कर ली थी कुछ, तो नाबार्ड के ऑर्डर हुए कि इस साल के ऑडिटर से पिछले 10 साल के सब्सिडी चेक कराओ। तो मैंने कहा भैया 10 साल की सब्सिडी हम कैसे चेक कर देंगे, पहली बात तो यू आर नॉट रेम्यूनरेटिंग अस, चलो रेम्यूनरेशन भी छोड़ दो, सोशल बैंकिंग है, तो हमें 10 साल के रिकॉर्ड ले आओ। बोले रिकॉर्ड तो है नहीं। आर यू जोकिंग, विदाउट रिकॉर्ड्स हाउ कैन वी सर्टिफाई दैट दीस सब्सिडीज वर प्रॉपर्ली क्लेम्ड। इंटरेस्ट सबवेंशन की सब्सिडी थी। लास्ट में, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, लास्ट में क्या डिसाइड हुआ सर, जो उनके चेयरमैन थे बोले सर कि आप कोई रास्ता आप ही बता सकते हो, राजेश भाई आप तो राधा रानी के बहुत खास हो, आप ही बताओ क्या करना है। तो राजेश भाई बोले अच्छा चलो मैं बताता हूँ। मैंने ऊपर पूछा राधा रानी से, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। नीचे लिखा गया सर कि वी आर अनेबल टू सर्टिफाई द एफोर्टसेड फिगर्स एज द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल, और स्टैंप लग गई। उन्होंने कहा सर मेरा काम हो गया, वहां देखा जाएगा, एनेक्स्चर 11 आ गया। ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ब्रॉडली देखो, ये चीजें हर जगह नहीं लगाई जा सकती, मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सेप्शनली लगानी है और लगानी चाहिए। वहां पर टिकिंग होती है सर सर्टिफिकेट्स की, बस कि सर्टिफिकेट आ गया या नहीं आ गया, आपने अंदर क्या लिखा है नोबडी सीज इट, बट यू मस्ट हैव द रीजन फॉर राइटिंग सच काइंड ऑफ डिस्क्लेमर्स और ऑब्जर्वेशंस। और वो कैसे आप रीजन लोगे, वो आप लोगे थ्रू मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। एक दो इंपॉर्टेंट बड़े डॉक्यूमेंट है, एक एंगेजमेंट लेटर और एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 डील करता है और एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 580 डील करता है। 210 एंगेजमेंट लेटर है राजेश भाई, और नॉर्मली आपको ब्रांच वाला क्या कहेगा, हम लोग नहीं देते ये। और अगर हमारे जो एक स्टॉलवार्ट है इंस्टीट्यूशन है MM खन्ना साहब, उनका अगर एंगेजमेंट लेटर आपने दे दिया ब्रांच में जाते ही, तो ये बात पक्की है कि एंगेजमेंट, मैरिज तो छोड़ो, एंगेजमेंट ही टूट जाएगी। तो मैं अपने सभी फ्रेंड से कहता हूं आपको एंगेजमेंट रिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, दिस इज द एंगेजमेंट रिंग व्हिच यू विल रिसीव। आप पोस्ट मैरिज ले लेना। पोस्ट मैरिज का मतलब जब आपकी रिपोर्ट साइन हो रही हो, जब 1000 पेज साइन होते हैं तो 2 पेज नोबडी सीज,
तब एंगेजमेंट लेटर उसमें लगा दो कि ये भी सेंट्रल ऑडिटर की तरफ से था। नोबडी बॉदर्स। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन स्पेशली साइन कराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने सारे पॉइंट्स लिखते जाएं जहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन। एक तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट की बहुत बढ़िया बनी, तो जो चीजें हमें मदर इंस्टीट्यूट से मिल रही है वो बिल्कुल रेडीमेड चीजें मिल रही। और फिर ऐसा नहीं कि हमें रेडीमेड मिल गया अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कस्टमाइज भी करना है, क्योंकि हर ब्रांच की सर्कमस्टांसेस अलग हो सकती है। तो उसमें हमने जो और एक्स्ट्रा क्लॉजेज ऐड करनी है उसको करके, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से है कि एंगेजमेंट लेटर एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन पीयर रिव्यू का बहुत पार्ट एंड पार्सल है, इसको जरूर साइन कराएं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन आपकी स्किन को बहुत सेव करता है, लेकिन जितनी भी चीजें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में आप लिखवा रहे हैं, माइंड इट, उसमें आपने ये जरूर देखना है कि ये LFAR का भी पार्ट हो। ये जरूर देखना है कि ये या तो की ऑडिट मैटर्स का पार्ट बनेंगी या ये आपकी अदर मैटर पैराग्राफ की पार्ट बनेगी। कोई ऐसी चीज जो LFAR में आप लिख रहे हो, यू जस्ट सी कि इसका इंपैक्ट मैन ऑडिट रिपोर्ट पे होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग विथ यू, मैन ऑडिट रिपोर्ट का इतना इंपॉर्टेंस है कि आप स्केल के एक तराजू के एक पल्ले पे आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट रख दो और दूसरे पल्ले पे आप सारी और रिपोर्ट्स रख दो, LFAR रख दो, सर्टिफिकेट्स रख दो, व्हाट्सोएवर, घोषले जिलानी रख दो, जिसको रखना उसको रख दो। बराबर का दोनों का वेट है सर, कम नहीं है किसी का। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का पल्ला हमेशा भारी होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। और वो तभी भारी होगा जब हम परफॉर्म उस तरह से करके आएंगे जिस तरह से वी आर रिक्वायर्ड और वी आर डिजायर्ड। वी हैव टू प्रूव अवरसेल्व्स एज द परफॉर्मिंग ऑडिटर्स। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर 173 लोग इस समय सुन रहे हैं, ऑल दोज आर परफॉर्म, ये मेरी प्रिजम्पशन है राजेश भाई, बिलीव मी फॉर द गॉड सेक, कि ये सब परफॉर्मिंग ऑडिटर्स हैं। अगर नहीं हो तो 25 फरवरी को क्या पड़ी उनको ऑडिटर्स रिपोर्ट। जी सर, जी सर। और जो ऑफलाइन सुनेंगे उनके लिए भी ऐसा नहीं, कई बार मैं ऑफलाइन सुनता हूं, मैंने कहा यार जो अटेंड कर रहे थे उनकी तो बात हो गई, मेरी बात नहीं हुई। तो जो ऑफलाइन यूट्यूब के थ्रू सुनेंगे या कहीं से भी सुनेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे जब लोकेश भाई का प्रोग्राम होगा तो मैं सुनूंगा, चोपड़ा जी का प्रोग्राम मैं अटेंड करूंगा, अजय जैन का, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वन कैन नॉट गो थ्रू वन सेल्फ। अपने आप हम सब पूरा नहीं पढ़ सकते सर। देखो मेरा फोकस हमेशा ऑडिटर रिपोर्ट पे रहता, तो मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। जैन साहब हमारे, अजय जैन जी LFAR पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जी सर, जी सबका अलग अलग। लोकेश भाई हमारे जब आते हैं तो वो IT को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। चोपड़ा जी लोन्स एंड एडवांसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ चोपड़ा जी, हाँ चोपड़ा जी। तो सबकी अपनी अपनी USP है, और हम जब उनको सुनते हैं तो हमें सब इकट्ठा, हमें तो सारा इकट्ठा करना है एज ए ऑडिटर जब हम जा रहे हैं, तो वो चीजें इकट्ठी करके अप्लाई करनी है। और ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी ऑडिटर्स रिपोर्ट ड्राफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम आए या किसी फैक्ट्स में दिक्कत आए कि इसको कहां पे रिप्लेसिंग इसकी होनी चाहिए, आई एम अवेलेबल विथ यू फॉर 24/7 एट दैट टाइम। मैं अपनी ब्रांच छोड़ के वो काम करता हूँ, क्योंकि मेरी ये हॉबी है, मेरा ये पैशन है कि हमारे प्रोफेशन से रिपोर्ट मॉडिफाई जानी चाहिए जब चीजें गलत हो रही हैं तो। एंड वी शुड नॉट फियर, वी शुड नॉट स्ट्रगल, एंड वी शुड नॉट फाइट ऑल्सो। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्बल। कितना भी कोई गलत आदमी हो, एक बात बताएं राजेश भाई, कि मैं अगर आपसे कुछ गलत बोलता हूं और आप चुप रहते हो तो क्या होगा? वापस मेरे पास ही आएगा ना वो। बिल्कुल हम ठीक किसी बात। को कोई चीज दे रहे हो वो नहीं ले रहा है, तो कुदरत का नियम क्या है, नेचर का, वो वापस आपके रिवर्स, पास बाउंस बैक होगा। बिल्कुल सही बात। लाइक वाइज इन द ब्रांच, कोई आप कुछ भी कितना भी आपको इरिटेट करे, करते हैं लोग, नेचर होती है किसी की, लेकिन आपको यू हैव टू बी अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग, सो दैट कि कल को अगर कंट्रोलर भी ब्रांच में पूछे प्यून से भी कि ऑडिटर कैसे थे, तो आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट जानी चाहिए सर कि ऑडिटर्स की बिहेवियर, क्योंकि ये सब चीजें बहुत काउंट करती हैं। कई बार लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ऑडिट प्रोफेशन एनीवेयर। यू हैव टू प्रूव योर अल्टीमेट, क्योंकि आपने काम करना है, परफॉर्म करना है। बिलीव मी, कितनी बार आप कंट्रोलर से शिकायत करके इंफॉर्मेशन ले लोगे? एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, कितनी बार आप फोन करोगे? एंड अल्टीमेटली कंट्रोलर भी इरिटेट हो जाएगा, फिर आप महा कंट्रोलर के पास जाओगे, वो इरिटेट हो जाए। तो आपने जो इंफॉर्मेशन जहां से निकलवानी वहीं से आनी चाहिए। बस आपने देखना यही कि ए नहीं दे रहा तो बी दे देगा, पोलाइट भी, और मिलेगी तभी राजेश भाई जब हम बिल्कुल पोलाइट रहेंगे, बिल्कुल सबमिसिव रहेंगे और बिल्कुल
इग्नोरेंट रहेंगे कि हमें तो कुछ आता नहीं, हम तो बस फाइल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। फाइल के लिए इकट्ठा कर हाँ, रहे हैं। मुकेश भाई हमारे सीनियर पार्टनर, उन्होंने बोला हुआ है कि फाइल अगर मोटी नहीं हुई तो हाँ। ऑडिट ले लो, तो भैया मैं फाइल मोटी करवा दूं मेरी, राइट। तो वो अप्रोच के साथ काम करना है और वो सब चीजें। तो पहला दिन हमारा शुरू हुआ था सर, हम वहीं पे रुके हुए हैं, तो हमने ये सारी रिपोर्ट्स ले ली, उसमें से निकाल लिया, ब्रांच की हमारी वर्किंग में पता लग गई। अब जब मैं खुद बिजी हो गया तो ब्रांच को भी तो बिजी होना चाहिए सर। तो राजेश भाई मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक मैं लिस्ट दे देता हूँ रजिस्टर्स की, कि इनमें से कौन कौन से रजिस्टर आपके यहाँ मेंटेन हो रहे हैं और कितने अपडेटेड है। और वो 20-25 रजिस्टर की लिस्ट है। आज भी काफी बैंकों में डिस्पाइट बीइंग सीबीएस एनवायरनमेंट वो मैनुअली मेंटेन होते हैं, और अगर मैनुअली नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिकली होते तो इलेक्ट्रॉनिकली सही। मुझे ये बता दो कि ये रजिस्टर्स मेंटेन्ड है या नहीं है, अगर है तो कब तक अपडेटेड है, अगर अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट करा, या लास्ट कब अपडेटेड है? नहीं आप अपडेट करा लें, जब तक हम ऑडिट कर रहे हैं सर अपडेट करा लें। अब आपने फिर एक पॉजिटिव साइन दे दी, देखो कितने आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, फिर कह दिया कि आप अपडेट करा लें और मुझे दिखा दें। अब क्या हुआ, जो मुकेश जी 25-30 रजिस्टर है, हर डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ रजिस्टर है, किसी का फिक्स एसेट रजिस्टर है, किसी का टोकन रजिस्टर है, किसी का स्टॉक रजिस्टर है, किसी का कुछ है, किसी का अटेंडेंस है, सो मेनी रजिस्टर्स आर देयर, एवरी डिपार्टमेंट गेट्स विजिट, क्योंकि ऑडिटर ने बोला, ऑडिटर ने देखना है। तो मैंने तो यहां तक नोटिस किया, रात भर बैठ के वो रजिस्टर पूरे होते हैं। आपकी जो स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है उसका भी रजिस्टर होता है, डीपी निकालने का भी रजिस्टर होता है, डीपी निकालने के लिए है? जी। कौन सी स्टेटमेंट का भाई। अब उससे क्या हुआ, 2 पर्पस सॉल्व हुए राजेश भाई। एक तो आपने ब्रांच को बिजी कर दिया, अब वो इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे आपके काम में, राइट। सेकंड, आपने एक वैल्यू एडिशन दे दी ब्रांच को, आपने रिकॉर्ड्स अपडेट करा दी, ये वैल्यू एडिशन है ब्रांच के लिए। तो इस तरह की अप्रोच के साथ चलना चाहिए। वो जब आपने रजिस्टर दे दिए, वो सारी चीजें बहुत सारी है, मैं आपके साथ सब चीजें शेयर कर दूंगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और उसका भी शेयर कर दूंगा अगर आप कहेंगे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस ऑडिट को अगर किसी तरह से बचाना है, बल्कि मैं चाहूंगा, इतने लोग जुड़े हुए, मुझे कई बार क्या लगता है राजेश भाई कि आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज, और इतने लोग जब जुड़े होते हैं तो लगता है कि उनसे कुछ मिल जाए सीखने को। फिजिकल में ये बहुत होता था कि ये मेरा रिजोल्यूशन होता था कि हर प्रोग्राम से मैं कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा, किसी ना किसी फ्रेंड से अपने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन लेके आऊंगा। लेकिन वर्चुअल में ये थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई है। तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम अगर है, तो इतने लोग जुड़े हुए, कोई किसी भी तरह की क्वेरी डिस्कस कर सकता है, कोई अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वन कैन डू। बाकी मैं बता दूं, मास्टर सर्कुलर की थोड़ा टेक्निकल बात भी कर दूं। मास्टर सर्कुलर प्रूडेंशियल नॉर्म्स का 6 साल बाद थैंकफुली आरबीआई ने रिवाइज कर दिया। 1 अक्टूबर का पहला सर्कुलर है, 1 अक्टूबर 2021 का। इससे पहले जुलाई 15 वाला चल रहा था, तो हमें बाद के सर्कुलर को कोरिलेट करना पड़ता। अब क्या हुआ कि 1 अक्टूबर के बाद 2021 के बाद कोई सर्कुलर अगर है प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे, तो उसको हमें साथ में लेना है। तो उसमें केवल 2 सर्कुलर आए हुए हैं 1 अक्टूबर के बाद। एक सर्कुलर आया है आपका अगर मैं बात करूं फरवरी में आया, क्लैरिफिकेशन नेचर का। 1 नवंबर में आया है, वो भी क्लैरिफिकेशन और प्रूडेंशियल नॉर्म्स है। अब उन्होंने बता दिया कि 90 डेज का मतलब 90 डेज ही होता। कई बार लोग कहते थे 90 डेज को छोड़ दो, 91st डे को देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन 90 डेज क्लोज हो रहा है उसी दिन आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, डोंट सी के बैलेंस शीट डेट पे होगा। तो बहुत क्लैरिफिकेटरी नेचर के 2 है, एक नवंबर में आया और एक क्लैरिफिकेशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन आई। यू सी द हाइट ऑफ द नॉर्म्स, कि पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमारे इस पैरे का मतलब ये नहीं ये था। अब उन्होंने बताया कि हमारा उस क्लैरिफिकेशन का मतलब ये नहीं ये था। तो 2 सर्कुलर उसके बाद आए, 1 नवंबर में आया। हमारा जो गाइडेंस नोट है राजेश भाई, वो 31 जनवरी तक अपडेटेड है। 31 जनवरी तक के सारे सर्कुलर्स वहां कंपाइल्ड है, सारे सर्कुलर सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। 31 जन के बाद आपको जो नए सर्कुलर है वो आपको आरबीआई साइड से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर्स, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको टेक इट ग्रांटेड मत लें, इस असाइनमेंट को, गाइडेंस नोट को अच्छे से देखें आप, और आपने डिलीवरी कहाँ करनी है बस वो देखें। आपका फोकस होना चाहिए लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि ऑडिट के बाद आप एलएफएआर को पढ़ रहे हो, यू मस्ट गो थ्रू दी एलएफएआर ट्वाइस और थ्राइस बिफोर स्टार्टिंग द ब्रांच, कि आपको पता है कि ये चीजें यहाँ पे रिपोर्टिंग होनी है। लाइकवाइज आपकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ इफेक्ट हो रही है वो देखना। ऑडिट रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया कि अगर नंबर्स आपके हिलते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन से, तो आपको कॉल लेने की जरूरत है
कि वो क्वालिफाई होगी या एडवर्स होगी। कुछ लोगों का व्यू ये आ जाता है कि बैंक में तो वो फ्रीज होती है ऑडिट रिपोर्ट, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाउ कैन दे फ्रीज अवर ओपिनियन? अगर वो फ्रीज कर रहे हैं फिर ऑडिट कराने का फायदा क्या है? और कई जगह क्या होता है, एक विंडो खुलती है जिसमें 100 या 200 पेज की 200 वर्ड्स की लिमिटेशन होती है राजेश भाई, कि 200 करेक्टर आप फीड कर सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन के। मैं कहता हूं मैं 200 करेक्टर की जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए तो 20 करेक्टर काफी है। हम क्या लिखते हैं, अवर फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट सब्स्टिट्यूट दिस सॉफ्ट रिपोर्ट, काम खत्म, आप लगा दो डिजिटल। अवर फिजिकल एडवर्स ओपिनियन, अगर एडवर्स ओपिनियन लिखता हूं, फिजिकल एडवर्स ओपिनियन सब्स्टिट्यूट दिस सॉफ्ट रिपोर्ट, केवल इतना लिख रहा है आपने, कुछ नहीं लिखना ज्यादा। So friends, with folded hands, I thank you all and invite your suggestions or experiences or questions whatsoever. Thank you. सर 3 क्वेश्चन आए हैं सर, सर तो क्विकली ले लें सर इनको या? बिल्कुल ले लें सर। पहला है रविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं, I detected many standard accounts which were NPA and which were shown as standard in bank branch audit. CVS is not foolproof. ये सजेशन है इनका। ये इसमें रविंदर जी बिल्कुल वही, आपने बिल्कुल सही ठीक है। बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की है सर। और अगर ये क्वेंटम आपका बढ़ के पूरे टोटल एडवांसेस का क्वेंटम से मैं 4-5% का वेरिएशन कर देता है, तो इट इज ए परफेक्ट केस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। यस सर, यस। क्योंकि Next. जब नंबर ऑफ अकाउंट्स राजेश भाई ज्यादा होते हैं, आप एक चीज मैं और बता दूं एमओसी की, देखो उसी बात कहते बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। एमओसी बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली चीज, मेक इट क्लियर, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स। क्योंकि कोई एमओसी का मतलब है ये मेमोरेंडम वाउचर्स हैं, वाउचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स की नहीं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूमिनस एमओसी है तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको बनवाए। कई बार हम लोग खुद उस काम में लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए सर। सेकंड, एमओसी अगर वो साइन नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, यू कैन से टू द ब्रांच मैनेजमेंट कि आप इस पे साइन मत करें, हम सिंगल साइन करके दे देंगे, या आप लिख दें कि वी आर नॉट एग्रीड विद द एमओसी और आप साइन कर दें। इट हैज द इक्वल वेट। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत सारी एमओसी, जैसे एग्रीकल्चर ब्रांच में है 500 अकाउंट एमओसी में जाने हैं, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट रिक्लासिफाइड। और अगर आप कराएंगे भी रिक्लासिफाई तो वो सही क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि उसकी डेट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनपीए डेराइव करना बहुत मुश्किल है, और डेराइव भी हो गई तो उसका इंटरेस्ट रिवर्सल कितना आएगा वो बहुत मुश्किल है। 4-4 साल 5-5 साल के अकाउंट्स पुराने होते हैं, तो उस केस में एडवर्स ओपिनियन एक रास्ता होता है, सबसे बढ़िया वही करना चाहिए। और सर नेक्स्ट है देवेंद्र खुराना जी पूछ रहे हैं, इवन इफ रिपोर्टेड बाय सीसीए with regard to no exception report is monthly report, no action by JADO inspectorate head office of bank. सर देखो, वो अपना कोई रिस्पॉन्स दें ना दें, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपनी LFAR में, हमने अपने OMP पैराग्राफ में, मैन ऑडिटर रिपोर्ट में जरूर लिखना है सर। इट इज अप टू देम कि वो हमारी उस वैल्यू एडिशन को लेते हैं नहीं लेते हैं, हमने अपने आप को इसको सेव करके चलना है सर। नेक्स्ट अखिलेश गर्ग जी हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज टू बी रिटन बाय बैंक और ऑडिटर। अखिलेश जी हमारे बड़े बहुत प्रेमी है हमारे भी, सबसे बड़े प्रेमी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कब से वो कहते ना कि देखा नहीं उनका चेहरा। मैं तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर वो आ नहीं रहे, मैं तो रिक्वेस्ट की है उनको। वो कहते कि मुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। आजकल बहुत चल रहा है हिजाब पे भी सर। हिजाब पे चल रहा है, इसलिए मैंने नकाब कहा सर, हिजाब नहीं कहा इसलिए। तो अखिलेश भाई सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सी ऐसी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में जो होती कुछ है, करनी कुछ पड़ती हैं। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन लेटर देना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि प्रैक्टिकली हमें ही बनाना पड़ता है। और जब उसने हमें एड्रेस कर दिया और हमारे अपने साइन कर दिए तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। दे कैन नॉट डिनाई एट एनी स्टेज की जी उन्होंने ड्राफ्ट किया था। भाई अगर आप साइन कर, अगर वो इस तरह से बात करेंगे तो हम ये कहेंगे चलो ड्राफ्ट हम भर लेते हैं बैंक का 2 करोड़ का, आप साइन कर दो। इसका मतलब आप ऐसे भी कर देते हो कि कस्टमर आया और ड्राफ्ट भर दिया और आपने साइन कर दिए, तो ये बैंक वाला कभी नहीं कह सकता कि हमने इस तरह से साइन कर दिए। क्यों राजेश भाई? बिल्कुल ठीक बात है सर। यस सर। सर अब मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, अब तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, कोई भी हो।
सर गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट का फ्रीली डाउनलोडेबल है, प्लीज जरूर डाउनलोड करें। बैंक का पोर्टल जरूर विजिट करें, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखें, चेयरमैन को देखें, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देखें, इन सब चीजों को। और आज से ही 25 फरवरी को राजेश भाई ने शंख बजा दिया है बैंक ब्रांच ऑडिट का, तो अगर आप कंटिन्यूइंग ऑडिटर्स हैं एटलीस्ट, तो कम से कम अभी से तैयारी शुरू करें। थैंक यू सर। Thank you, Gopal ji, for a very, very wonderful, deliberated speech or education part to us, to our member. जिस सरल भाषा में और अपनी मदर टंग हिंदी भाषा में सर ने एक एक चीज को समझाया है और आज इसे तैयारी करानी शुरू कर दी है। कहाँ से हमने तैयारी करनी है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, जो कि जनरली झगड़ा रहता है ब्रांचेज में। यस, उसको हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, हाउ टू कंप्लीट ऑडिट विद इन ए लिमिटेड टाइम और अच्छी तरह से उसको कंप्लीट करना कि आगे भी कोई दिक्कत ना आए, ये सर ने बड़े अच्छे सरल शब्दों में बताया है। और मैं तो धन्यवाद ही करना चाहूंगा सर का, और सभी मेंबरों की तरफ से भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी सर, गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सर हमको इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे। आप ये देखो मुकेश राजेश भाई जी अगर राजेश जी ने आज अलाउ किया, हमें पैनलिस्ट में लाए हैं सर, 2 मिनट के लिए सिर्फ ये बताना चाहूंगा जी कि एट द एज ऑफ 60 मैं काफी जूनियर हूँ, बिकॉज आई ज्वाइंट सीए along with my daughter at the age of 48. Oh, very easy. good. Very good. 46 and completed CA at the age of 50. So Sir, I salute Yeah. you, sir. Salute you, sir. Salute you. बहुत I have experience of 10 years only in the CA process. Salute you, sir. Salute you. You are basically the role model for the profession. Yes. तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, सुजीत वालिया जी का भी, मुकेश श्रीवास्तव की भी, और सर भी हमेशा अवेलेबल है यदि किसी मेंबर को कभी कोई प्रॉब्लम आए। जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर सबको देना उचित नहीं है क्योंकि अननेसेसरली फिर कॉल भी आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मैं बता दूं राजेश भाई, नॉर्मली आई डोंट पिक द कॉल एट दैट मोमेंट, हाँ बट मैं रिस्पॉन्ड बैक जरूर करता हूँ सर। वो वैसे ही मैंने ना सर, कैसे कई बार क्या होता है कि स्पीकर बोल देते हैं, मैंने सर किसी टैक्स वाले मेंबर का स्पीकर का मोबाइल नंबर यहाँ लिख दिया, अब वो हर बात पे मेंबर उनको फोन कर रहा है। कपिल भाई का मत लिखना बस। तो वो सर स्पीकर साहब परेशान हो गए, तो मैं किसी मेंबर के स्पीकर का फोन नंबर नहीं देता हूँ unless or until a specific request by the such member to me. Yes. So, and my dear friends, we must appreciate that everybody has its own obligations. Yes. ठीक है, आप कोई भी बात है आप SMS पे, आप WhatsApp पे करें, और I do believe, चाहे मेरे कपिल जी हो चाहे कोई भी हो, everybody responsive. Yes, क्योंकि देखो जो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, आप ये माने 80% लोगों की कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है हम लोगों की, केवल ये है कि हमें प्रोफेशन ने दिया है, हम उसको ऊपर पास ऑन कर सकें और आप लोगों से और फर्दर, क्योंकि नॉलेज आप जितना शेयर करोगे उतनी बढ़ेगी। जी सर। सो इट इज नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज, और आप लोगों की क्वेरी से हम लोग सीखते हैं। बट यही है कि कई बार हम लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि 1 कॉल 2 कॉल 3, अगर 1 कॉल आपकी रिस्पॉन्ड नहीं हुई है तो यू मस्ट वेट और वेट, हाँ, कि किसी ना किसी टाइम में स्पीकर साहब विल कॉल यू बैक। नहीं, वी ऑल आर फ्रेंड्स। देखो कई बार हम अपने फ्रेंड्स को ही करते हैं। राजेश भाई ने मेरे बात करनी, मैंने इवन कपिल भाई की मैं बात बताऊं, आई नेवर कॉल हिम, जबकि आई वेरी 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 क्लोज टू हिम, बिलीव मी। जी सर। जब भी मुझे बात करनी है तो मैं मैसेज छोड़ता हूँ, SMS, व्हाट्सएप से भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कपिल भाई व्हाट्सएप से कम देखते हैं, तो हम SMS छोड़ देते हैं। जी सर। एंड ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स बैक। सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.